Good evening, audience. This is going to be our third meeting. Yes, for SBL September 2019. Okay. In the first meeting, we talked about the question paper. We read the question paper, the requirements, and everything. And in the second meeting, we started the answer, and we did approx 50, 40, 50%. This is going to be our third meeting, or I say last meeting. See, last meeting of answer or the whole paper. तो अगर कुछ बच्चों ने ये नहीं देखी यानी the previous two meetings, they can watch it first. और इसके लिए भी मैं ये कहूँगा, before you look at this answer paper or my expert opinion, I want you to solve it first. ना आप पहले खुद देखें. Let me share my screen now. आप पहले खुद देखें, कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आप पहले खुद you try to attempt it first. सही ना. Once you're done with it, and then you watch it. So if you have not done it, don't waste one very important case study of your life. Just pause it, solve it yourself, come play it, और ठीक है. अच्छा जी, चॉकलेट केस स्टडी, और सिर्फ केस स्टडी चॉकलेट नहीं है, मैं पहले भी 2 दफा कह चुका हूँ. इट्स अ वेरी इजी केस. बल्कि मुझे ये केस, जो मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये केस उस एसबीएल के लेवल पे नहीं लगता. यानी व्हेन इट्स अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, सही है ना, व्हेन इट्स अबाउट दैट कंप्लीट प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल, मुझे थोड़ा सा ये डाउन, थोड़ा मैं इसको मार्क्स कम दूंगा. ये दिस इज माय एनालिसिस बेस्ड ऑन 2020 पास्ट पेपर, 2018 पास्ट पेपर, या इवन 2019 के अंदर भी. तो मुझे थोड़ा सा एक इजी इसको कहने के, यानी इस पेपर को अटेम्प्ट करना, तभी तो नाम से ही हुआ ना चॉकलेट. नॉट ओनली इज अबाउट द चॉकलेट, इट इज लाइक अ स्वीट पेपर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. एंड वी हैव I think the third requirement. Let me see, because we already done with the first 2 requirements in meeting 1 of answer. तो मेरे सामने ये क्वेश्चन पेपर है, and we done with the financial, non-financial impact and all that. अच्छा, अब ये है requirement number 2. सही है. The audit and risk committee is currently carrying out an annual strategic review of Tulsi's risk management activities. Okay, as part of this review, the chairman of the audit and risk committee has asked you, because you are the consultant, to assist him in considering how the risk included in the current risk register, which is already provided in the question paper. आप देख सकते हैं आपके सामने, you have the question paper, कि जो risk which are included in the current risk register could have an impact on the strategic Dulci strategic aim, obviously. Now, what is the requirement? Compile a table. ये ऐसे ही होता था, F8 में भी ऐसे ही होता था, even when we used to have P1 या P7 या कहीं भी. तो जहां भी बात करता है, और whether it's SBL, ये जब भी वो आपसे कहता है कि analyze or assess the risk and then you get me the solution, या F8 audit में भी होता था ना कि what are the threats to independence and how to minimize it. तो वो आपसे अमूमन यही कहता है, that's the professional and a good way to write it, that's tabulate form. यहाँ भी उसने कहा कि compile a table. One is the risk thing, and second how you can manage it, यानी the control activities. इसको control activities भी बोल दो, इसको safeguard, risk minimization activity, mitigation activity, whatever, सही ना, जो भी आप heading दे. Compile a table for the chairman of those 2 committees, audit and risk committee, उसके लिए बनाना है, उसके लिए table है, यानी you actually addressing the chairman. The first requirement analyzes how the risk identified in the current risk register, which is already provided, I said, could have an impact on the achievement of Dulci strategic aim. यानी जो risk इन्होंने आपको दिए हैं in the question paper, जो अभी आप देख सकते हैं in the risk register which is already provided in the question, वो जो risk उन्होंने identify किए. देखो बात क्या है, उन्होंने आपको शनाख्त करके दे दिए. You don't need to identify it. Identification हो चुकी है. एक होता था ना risk management में हम पढ़ते हैं कि भाई first of all you all need to identify the risk, but here you don't need to do it क्योंकि risk are already identified. आपसे क्या कह रहा है वो कि भाई assess यानी analyze how the risk identified in the current risk register could have an impact. कि जो risk हमने ढूंढे हैं, शनाख्त किए हैं, उसका कैसे impact आएगा, यानी एक risk assessment वो आपसे करवाना है, सही ना, कि क्या उसकी probability होगी, किस तरह उसके consequences होंगे, and how it's going to affect our strategic aim. ये है requirement A का part 1, यानी टेबल की एक साइड. कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, उसी साइड के अंदर when they are actually assessing the risk, control भी बता रहे होते. This is wrong. This is wrong. This is not actually asked. वो पूछा गया है दूसरी रिक्वायरमेंट में, recommend mitigation activities, सही है ना, वो दूसरी रिक्वायरमेंट है. यानी इसी रिक्वायरमेंट में आप इसको मिनिमाइज करने के तरीके मत बता दें, उसने आपसे ऐसे नहीं पूछा. और you can have a different paragraph, लेकिन आप ये ना करें. जब उसने कह दिया कि टेबल बनाना है, तो on one side what are the risk assessment, what are the risks which you already identified and assess those risks, how it's going to affect your strategic aim, and second is यानी either bad thing or either how to minimize those
bad risks, you know, which are already assessed. ये बात, इसकी मिसाल मैं आपको दूं, क्योंकि when you already in SPL, so you understand audit and everything. ऑडिट में बच्चे गलती करते थे, तो मेरा अपना सब्जेक्ट है ऑडिट, तो मैं आपको ये भी बता दूं, उसमें बच्चे गलती करते हैं, जब बच्चे से पूछा जाता है फाइंड आउट द असर्शन ऑफ फिक्स एसेट या असर्शन ऑफ एनी एक्सवाइजेड, वो साथ साथ ऑडिट प्रोसीजर भी बता रहे थे. You never ask. आपसे इस रिक्वायरमेंट ने पूछा just list down the assertions, just list down or explain the assertion, and you explaining the audit procedure as well. These are two different things. तो यहाँ भी ऐसा ही है, जब risk पूछा है, in that requirement just talk about the risk, how it's going to affect the strategy game, and then you become a consultant and provide the solution. Okay, professional marks इसमें क्या दिए होंगे? अब हर दफा whenever you see this SBL paper, you always have a requirement of risk, और उस requirement of risk में जब भी वो ये बात पूछेगा तो प्रोफेशनल मार्क्स आपको किसके देता है कि आप किस तरह उसको प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन. सही है ना, कि एक रिस्क अगर आपको दिया है तो आपका दिमाग किन दिशाओं में चलता है, यानी एनालिसिस, है ना. प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालिसिस स्किल्स एंड कंसीडरिंग द रिस्क आइडेंटिफाइड, कि जो रिस्क मैंने तुम्हें बताए तुम्हारा दिमाग इसको कितनी जगहों पे जाके हिट करता है, हाउ इट्स गोना अफेक्ट आवर स्ट्रेटजी. दैट्स इट. ओके, लेट्स मूव ऑन. मैं ये क्वेश्चन पेपर हटा दूं ताकि मैं भी अपने आप को दिखता किधर हूं भाई. यो सही ना, मुझे भी अपने आप को देखना है. ऑलराइट, दिस इज हियर. ओके, सो इट इज रिक्वायरमेंट 2 एंड दिस इज 1. तो हम बात करते हैं, लेट्स से वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रिस्क, not identification, risk already identified, तो हम बोलते हैं भाई it's risk assessment. और दूसरा क्या है, controls, और whatever you say mitigation activities, और जो भी. सबसे पहला रिस्क क्या है? Once again I need to go to the risk register which is provided in the question paper, I repeat. ठीक है, और वो रिस्क रजिस्टर में पहला रिस्क क्या है? The first risk they identified by the CEO, जो कि रिस्क मैनेजर इस दफा CEO है, competitive marketplace. So you know the first risk is competitive risk. Competitive risk का मतलब क्या है कि how we lose our competitive advantage, how we lose our competitive edge, यानी हमारा competitor जो है may come over us, यानी it means maybe we lose our sale, क्योंकि जब आपका competitive edge खत्म होता है इसका मतलब क्या है, you actually losing the market, you actually losing your customer. आप अपने कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाते, एग्जिस्टिंग जाने लगते हैं, नए को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, यही सारा मसला है, लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड अल्टीमेटली योर ऑर्गेनाइजेशन गो डाउन. दैट्स कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिस्क, सही, कॉम्पिटिटिव मार्केटप्लेस. दैट्स द फर्स्ट रिस्क दे सी. और उसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या दी है? द ग्लोबल कन्फेक्शनरी मार्केट हैज मेनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, वी नो दैट, तभी तो उसने रेटिंग हाई लिखी है इसकी. आवर कॉम्पिटिटिव पोजीशन डिपेंड्स ऑन आवर continued ability to offer products which strongly appeal to consumers and which are readily available in the places they're demanded. All right, there you go. अब आ जाए, सबसे पहले इस रिस्क को एनालाइज करें. कि if we are facing this risk which is at high risk, according to the risk manager, it is the intensity of this risk is high because who's the risk manager? He's the competent guy, the CEO, जो overall देख रहा है, वो कह रहा है कि भाई this risk is high, यानी the competitive risk. Why? Because many of the confectioners and many of the sweet makers they are coming in the market. अब आप मुझे बताएं कि ये रिस्क, इस रिस्क को अगर हम जरा असेस करें तो कैसे? सबसे पहली चीज, yes we see intensity of competition because of online selling. एक सबसे बड़ा रिस्क तो हमें आजकल यही नजर आता है, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू जंप इन न्यू मार्केट्स बाय आवर कॉम्पिटिटर्स. क्यों उनके लिए इजी है? द रीजन इज दे हैव दिस मार्केट प्लेसेस, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जो ऑनलाइन है, सही है ना, एंड विच डेफिनेटली रिक्वायर व्हाट, लेस इन्वेस्टमेंट, और मे बी विद जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई जरूरत ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेंटोरी. पहले तो ऐसा होता था ना कि इन्वेंटरी की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती थी, अब तो कोई मसला ही नहीं है. आपके पास डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं where you can upload your products. अपलोड से मतलब कोई चॉकलेट्स अपलोड नहीं हो रही, उनकी पिक्चर्स, उनकी डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग, एंड यू हैव अ सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस. लेट्स से अगर हम यूरोप की बात करें, यहाँ पे तो ऐसी बात हो रही ना, तो यूरोप में तो कंट्रीज ही इतने करीब करीब है जैसे अमेरिका में स्टेट्स है, इतनी करीब है, बल्कि एक स्टेट के अंदर 3-4, जैसे अगर मैं टेक्सास की बात करूं, छोटे छोटे कंट्रीज. तो इसका मतलब इफ यू हैव अ सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस एंड यू हैव अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो यू कैन कवर अप सो मेनी न्यू मार्केट्स में न्यू कंट्रीज. तो एक तो बात ये नजर आती है कि द ऑनलाइन सेलिंग ऑप्शन, ये कॉम्पिटिटिवनेस, ये रिस्क को बढ़ाता है.
ठीक है, the new people, the new players are coming in via physically भी आ सकते हैं और online भी आ रहे हैं। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो look at the product Dulce is dealing, it's a chocolate, it means it's a very fancy product, ये बड़ी fancy product है और इस product में it requires continuous innovation, continuous creativity चाहिए in terms of, बात पूरी सुने, in terms of taste। आपके सामने नई नई चीजें, M&M की बात करें, M&M पहले नॉर्मल चॉकलेट्स की तरह आती थी, फिर M&M के अंदर एक वो एलमंड भी डाल दिया उसने कि इसके अंदर बादाम का दाना डाल दो, न्यू प्रोडक्ट, उसमें एलमंड डाल दो, वन मोर प्रोडक्ट, एक वो देखिए वो मिंट डाल दो। तो रिक्वायर कंटिन्यूस इनोवेशन इन प्रोडक्ट, यानी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, रिक्वायर्स कंटिन्यूस इनोवेशन इन पैकेजिंग। ये कितना बड़ा पॉइंट है, चॉकलेट बिकती ही उसकी पैकेजिंग से। मजे की बात, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था चॉकलेट पे, तो मैं आपको एक एग्जांपल, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ चॉकलेट का, लेकिन वो बड़ी फेमस चॉकलेट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। आपने वो चॉकलेट देखी, वो जो ऐसी बनी होती है, कोई नहीं देखा तो लेट मी चेंज द कलर, ये लो, मैंने उस पर एक आर्टिकल पढ़ा, ये देखो यूं 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 और यूं बनी, ये नीचे से, अब क्या नाम होता है, बहुत फेमस चॉकलेट है, खुलती किस तरह है, ऊपर से खुलना शुरू होती है, सिल्वर पैकेजिंग में आती है, तो बड़ी फेमस है, मेरे दिमाग से जा रहा है नाम से, तो वो खुलेगी, अभी बच्चों से पूछ लूंगा तो बता देंगे, तो वो खुलेगी और उसके बाद फिर नीचे वो एक ऐसे बॉल्स और यूं पॉइंटेड टिप्स से, इट्स लाइक दैट, वेरी फेमस, आप लोगों को तो नाम आ गया होगा, सही ना, उसमें सिल्वर। जब मैंने उसका आर्टिकल पढ़ा, इट वाज अबाउट द परसेप्शन, और उन्होंने इसकी एग्जांपल दी, उन्होंने कहा इसकी इस चॉकलेट में कोई ऐसी खास बात नहीं है, लाइक इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट बोला द पैकेजिंग एंड हाउ द वे यू ओपन द चॉकलेट, उसको जिस तरीके से आप खोलते हो, इट एक्चुअली क्रिएट्स द एक्साइटमेंट, यानी लोगों के लिए बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात होती है उसको खोलना और ये वो पूरे चैलेंज को, एंड देन यू एंजॉय। तो बोला एक नॉर्मल चॉकलेट, वाकई में नॉर्मल चॉकलेट, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजाइन एंड द पैकेजिंग, तो दिस थिंग, the product in which Dulce is dealing, it requires competition, continuous competition. क्यों? Requires continuous change in taste, new products, new segment, getting a new segment, और packaging से मुराद in terms of color, in terms of boxes, in terms of size and all that। फिर आप देखिए इस वक्त नई मार्केट सेगमेंट में बहुत competitors are getting in, for example diabetics, शुगर पेशेंट के लिए, for example health, डार्क चॉकलेट्स। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये ऑब्वियसली इट्स इंक्रीजिंग द रिस्क एंड न्यू कॉम्पिटिटर्स आर कमिंग इन, और इवन द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, if they are more creative and if they are innovative, ultimately Dulce's risk is going up। क्यों? They may lose the revenue lose कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ कम हो सकती है, इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर स्विच हो सकते हैं, और as such there is no loyalty। जरा बात को समझिए, इट इज नॉट लाइक एप्पल फोन, ऐसा थोड़ी है कि जिसमें कंपटीशन इतना स्ट्रांग हो गया कि यार एप्पल के बगैर मेरा काम ही नहीं होगा, बिकॉज आई एम डीलिंग विद iOS, सही है ना, मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ चल रहा हूँ। ये चॉकलेट अगर आप खुद अपने ऊपर रखे दें, लेट्स थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग, आप कितनी चॉकलेट्स खाते हैं और डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स खाते हैं, सही है ना, कोई ऐसा थोड़ी होता कि यही चॉकलेट वो ये अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरह एक और चीज, अवेलेबिलिटी, that's very important। look at this case study, इस केस स्टडी में भी आपको नजर आ रहा है कि they have two retail partners जो ऑप्शन आ रहे थे, but they have limiting factors the skilled workforce। तो ultimately if you don't have a raw material or maybe a proper supply chain or sourcing or maybe your cocoa farms और बहुत सारी चीजें, and you're unable to fulfill the demand, obviously the other guy will take the place, सही ना, जो स्ट्रेटेजी की स्पेस होगी वो दूसरा ले जाएगा। तो that also increases the risk in terms of quality, in terms of innovation, in terms of supply chain, right time, quantity and everything, availability, ये सब चीजें जो हैं, channel of selling, process। आईफोन लॉन्च हुआ, उसने क्या किया, सबसे पहले एक ईमेल भेजी और बताया कि व्हाट आर द स्टेप्स यू शुड टेक टू गेट rid of your existing iPhone, क्योंकि उसको पता है, they have the CRM, they know I have this iPhone, तो उसको ये बात पता है कि अब जो नया फोन लॉन्च हुआ है तो इनको फौरन कैसे स्विच करवाना है। तो उसके लिए पता है क्या किया, they made it very easy। उसके हमें एक ईमेल भेजी और स्टेप्स बता दिए। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन दिस लिंक। सेकंड स्टेप, यू हैव, जैसे आई हैव द एप्पल क्रेडिट कार्ड, अप्लाई दिस, send your this existing phone and get a new one, ऐसे दो चार स्टेप बताएं, that's it। ये भी नहीं बोल रहे कि हमारी शॉप पे आओ, देखो, ये करो, वो करो, नो, मेक इट इजी। सो वंस अगेन यहाँ पर ये रिस्क जो है ना, कॉम्पिटिटिव एज जो है वो ज्यादा आप कब लूज करते हो, व्हेन योर प्रोसेस ऑफ
selling, when your process of developing and your process of supply chain is difficult, it's not user friendly. अब सवाल ये रिस्क तो है, नो डाउट, जो सेल को हिट करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी को, एंड एवरीथिंग. How to control this competitive risk? How to minimize it? Not saying eliminate it, लेकिन इस रिस्क को कैसे कंट्रोल करें? तो Dulci, or with the name Dulci, should invest more in competitive strategies. ज्यादा से ज्यादा उसको इन्वेस्ट करना है किसमें? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज में. फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करके, फॉर एग्जाम्पल finding good suppliers or cost effective suppliers, smart supplier, make some big contracts with them, जिससे ultimately आप अपनी price दोगे. Once you become a cost leader, what happen? You can pass on the discount to your customers. तो एक बात तो है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है किसमें? सप्लायर रिलेशनशिप में और पूरी सप्लाई चेन की उस कंट्रोलिंग में, so that you can you get more competitive advantage. Then obviously Michael Porter ने जो एक strategy बताई, differentiation, investment more in research and development. Invest more in research and development. और research and development से मुराद not only your product but your process as well. अपनी प्रोडक्ट में तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है, बिकॉज मैंने अभी आपसे कहा कि इट्स अ वेरी डायनामिक इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री. द मोर यू ब्रिंगिंग एंड कंपेयर टू योर कस्टमर, कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, मोर यू इन्वेस्ट एंड मोर यू आर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एंड अडैप्टिव टू योर एनवायरनमेंट, मोर यू ग्रो. सीधी बात है, जितने नए फ्लेवर लाओगे. ये ऐसा ही है, डिमांड है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई है तो डिमांड. आप कितनी चीजें यूं करके देखिए, द न्यू स्टाइल, जितनी सप्लाई, आप रैक में जाएं, जब भी आप जाते हैं सुपरमार्केट में, गोइंग फॉर शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग और व्हाटएवर, यार कोई चीज सामने दिखाओगे तो हम बाय करेंगे ना. तो जो ज्यादा दिखाएगा, ज्यादा कलर, ज्यादा पैकेजिंग और ये चीजें, अल्टीमेटली वो चीजें बिकेंगी. सही है ना? स्पेशली ऑन डिफरेंट इवेंट्स और ओकेजन और सब कुछ. और मैंने लास्ट मीटिंग में आपको बताया भी बास्केट वाली बात, लोग अंडे दूध लेने आ रहे हैं, दे कैन बाय चॉकलेट. सही है ना? दे कम अप विद देयर किड्स. तो किड्स जो है वो ऑब्वियसली व्हेन यू आर एट द कैश रजिस्टर, बच्चे एक दो चॉकलेट उठा ही लेते हैं. इवन आप ये देखें कि ये तक भी होता है कि व्हेन दे आर रनिंग आउट ऑफ चेंज, फॉर एग्जांपल उनका कॉइंस वगैरह नहीं होते, तो व्हाट दे गिव यू चॉकलेट. कि यार ये चॉकलेट ले लो, 50 सेंट्स नहीं है, 20 सेंट्स नहीं है, सही भी चॉकलेट दे दी. तो चॉकलेट तो एक ऐसी प्रोडक्ट है कि वो जितनी आप प्रोसेस और जितनी सप्लाई होगी, जितनी इनोवेटिव सप्लाई होगी, more you'll get the competitive advantage. That's the thing. So research and development में ज्यादा invest कर सकते हैं. And then they can invest more in process of selling. For example, their website, their apps. सही है ना? यानी pricing में, इसमें, अच्छा इसी तरह, और they may take first mover advantage. बहुत सारी चीजों में they can take first mover advantage, because it's not only you doing the research and development thing. Your competitors, they're also doing the research and development. So whoever will come first in the gap, जिसको हम क्या कहते हैं, strategic space, कि जो उस strategic space में जल्दी इन हो जाएगा, सही है ना, तो वो ज्यादा. फिर इसी के साथ साथ not only you invest in the product, but give a complementary product as well. सही ना, जो उसके साथ साथ चलती है. चॉकलेट है, बच्चों की चीज है, बच्चे ज्यादा खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, लेकिन बच्चे उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. सही है ना? दे डोंट केयर व्हाट्स द वैल्यू फॉर मनी. वो नहीं देखते, वो क्या देखते हैं, ठीक है, विद दिस चॉकलेट आई कैन हैव दिस गिफ्ट. अच्छा भाई, इस चॉकलेट की ऐसी पैकेजिंग है, ये कितने बड़े कप में आ रहा है, इतने बड़े जार में आ रहा है, दे डोंट केयर. आप जैसे, let's say if you are adult, we are rational decision maker, what we see, we look at the weight of the chocolate. यार कितना चॉकलेट का वेट है और उसका in terms of यानी डॉलर पर ग्राम कितना है. लेकिन वो ये नहीं देखते डॉलर पर ग्राम कितना है, वही देखते हैं इसकी पैकेजिंग क्या है, ये किस किस्म के कार्टून कैरेक्टर के साथ आ रहा है. तो ये सब चीजें, this way you can get a competitive advantage by using these controls. सही है ना? किस तरह? More investment in the product, in research and development, in the process, in selling process and all that. ठीक है? All right, let's look here. आप और ज्यादा भी देख सकते हैं. सही है ना? सेकंड रिस्क क्या है? Let me see again. सेकंड रिस्क जो उसने बताया is by operation director, जिसने कहा input prices are driven by commodity markets. Adverse change in certain commodity prices, particularly cocoa supplies could affect our liquidity and profitability. Absolutely. अच्छा जी, अब आ जाए जरा इस पे बात कर लेते हैं. हाँ, यानी प्राइस. आप बताएं how it can be a risk. ये रिस्क कैसे हो सकता है? Obviously, if the prices are fluctuating, ultimate problem क्या होगा? देखिए मैंने आपसे पहले कहा ये इतना मुश्किल नहीं है ये वाला केस. Ultimately, it's going to affect what? It is going to affect your profitability.
It is going to affect your selling price. आपकी selling price को hit करेगा, and if the selling price is constant, obviously ये price fluctuation आपकी profitability को hit कर सकता है, आपकी long term sustainability is going to be affected, उसको hit करेगा. अच्छा, और ये क्या काम कर सकता है? जब प्राइस इस तरह फ्लक्चुएशन आएगी, ऑब्वियसली देयर आर अदर कॉम्पिटिटर्स एज वेल, बहुत सारे और कॉम्पिटिटर्स भी हैं. वो क्या करेंगे भाई? वो भी माल उठाना शुरू कर देंगे, यानी ये चीज सप्लाई को भी हिट कर सकती है. एंड मे बी वन ऑफ द बिग रिस्क इज रनिंग, यू मे रन आउट ऑफ स्टॉक. सही ना, स्टॉक आउट. And once you are running out of stock, already in Dulci, you have seen the limiting factor was the labor, skilled workers. लेकिन साथ साथ if you're running out of material, तो ultimately you can't do that. What? एक तो आप अपनी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर सकते. सही ना, you have the retail partners, ये बातें आपने करनी है. दूसरी के बाद different retail partners भी हैं. Their customers are also dependent because you're not dealing directly with the consumer. Although in some part you're dealing with your consumer, लेकिन मसला ये है कि this is a huge risk. If you don't have the supply in your bag, सही ना, आपके पास चीजें नहीं आ रही, या you have contract with your retail partners and ultimately the price is going up, how are you going to satisfy with your customer? I'm not saying consumer, customer, क्योंकि उस customer का आगे भी consumer है. ठीक है ना, आपने उसको पहले बेचना है, वो बोलेगा यार मुझे तो इस प्राइस पे दो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका रॉ मटेरियल. तो दिस इज अ गुड रिस्क. ये एक बड़ा डिसेंट रिस्क है. उसने कहा भी ये मीडियम रिस्क है, क्योंकि ये प्राइसेस, लेट्स लुक हियर, उसने कहा ना की इनपुट प्राइसेस, ये इनपुट प्राइसेस जिसमें मेजर आपका क्या है, कोकोआ. अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आप ये भी नहीं कर सकते कंट्रोल में कि ओके आई विल फाइंड द अल्टरनेटिव. क्या अल्टरनेटिव ढूंढोगे भाई? कोई गाड़ी थोड़ी है ये जिसके अंदर आपने कहा कि ओके दिस फ्यूल नहीं है तो भाई विल डू सम रिसर्च एंड विल हैव इलेक्ट्रिक कार और विल हैव एक्सवाइजेड कार. ये जैसे जहाज उड़ाया कोकोनट ऑयल से, तो ऐसा तो नहीं करेंगे भाई. ये तो चॉकलेट है, इसके लिए तो द वेरी की इज कोको, कि भाई यही इसका मेजर इंग्रेडिएंट है. हाउ कैन आई मिनिमाइज और हाउ कैन आई मैनेज दिस रिस्क? इस रिस्क को मैं कैसे मैनेज करूं? तो देखिए, इसमें एक सबसे अहम बात तो मुझे नजर आती है, अ गुड इन्वेंटोरी मैनेजमेंट, अ गुड स्टॉक मैनेजमेंट, जो आप लोग पढ़ते रहते हो, योर ऑप्टिमम लेवल. सही है ना, आपको उस चीज पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि यू नीड टू हैव अ गुड मिनिमम एंड द मैक्सिमम स्टॉक लेवल. ऑप्टिमम लेवल आपको रखना होगा बिकॉज यू हैव अ गुड फोरकास्टिंग इन टर्म्स ऑफ डिमांड. ठीक है ना, आपको पता है कि भाई हमारी डिमांड क्या है, यानी इस चीज पे आपको इन्वेस्ट करना होगा टू मैनेज दिस रिस्क. कि लेट्स से नेक्स्ट 6 मंथ what's our demand from our retail partner or consumer, or what's the market demand. See, in environment you are a big player, तो आपके पास Dulci is a good old big player, experienced player, who have good management and good leadership, so they have idea about the forecast. See, अपनी डिमांड का उनको आइडिया है. They have good relationship with the retail partners, वो भी इनको बता सकते हैं कि this sort of material we need in future. इनका वैसे मार्केट सर्वे और ये सारी चीजें भी है. दिस वे दे कैन मैनेज द रिस्क बाय हैविंग अ हेल्दी स्टॉक, एक हेल्दी स्टॉक मैनेजमेंट करके विद एक्स प्राइस. तो इससे क्या होगा, लेट्स से इफ यू डू इट राइट नाउ, सही ना, आपने एक अच्छी फोरसी कर लिया एंड यू हैव द फोरकास्टिंग एंड ऑल दैट, एंड यू गेट अ स्टॉक, एक आपके पास स्टॉक आ गया, तो उससे आपको फायदा क्या होगा कि योर प्राइस विल बी कांस्टेंट फॉर लेट्स से नेक्स्ट गुड 12 मंथ्स. सही ना, उसके लिए आपने कांस्टेंट कर दी, एंड एट द सेम टाइम यू हैव दिस क्वांटिटी. तो आप दोनों चीजों से बच गए, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचे, प्लस आपके पास माल भी पड़ा हुआ है. सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहलाएगा, वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. सही ना, यू कैन हैव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यू हैव दिस हेजिंग. ठीक है. अच्छा, क्या प्राइसेस अप डाउन होती है? यस होती है, बट नॉट द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस भी अप डाउन होती है, लेकिन किस तरह होती है? सम टाइम दे कीप दिस बेस इन्फ्लेशन. सही ना, ये तो समझ आता है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट समर वेकेशन पे अगर जाओगे वेगस और आपने कहा कि भाई ये हमने जब चॉकलेट्स बाय की थी, इट वाज लेट्स से $2.50. सही ना, 250 की थी. लेकिन इस दफा जब गए आफ्टर 12 मंथ्स, सो मे बी इट्स लाइक $2.60 या $2.55 या $2.70, और मे बी $3 विद अ गिफ्ट, कोई गिफ्ट साथ दे दिया. तो वो प्राइस कस्टमर के लिए एडजस्टेबल है, या इवन विद द रिटेल पार्टनर्स ये हो सकता है कि ओके विल मेंटेन आवर प्राइस फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, लेकिन उसके बाद विल रिवाइज इट. तो ये हो सकता है, ये कैसे? थ्रू हेजिंग एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो दिस वे ये जाहिर है कि इनपुट प्राइसेस जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस, उसके लिए या तो आप अच्छी गुड स्टॉक मैनेजमेंट करें, और इफ यू डोंट हैव द प्लेस फॉर द इन्वेंटरी होल्डिंग एंड ऑल दैट, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और हेजिंग वगैरह की जाती है, जैसे आप डॉलर्स में और फॉरेन करेंसी में करते हो. सिंपल रिस्क है. अच्छा, देन वन मोर रिस्क. अब कौन सा रिस्क है भाई? द थर्ड वन. ऑलराइट, यस,
एडिबल आइटम है, खाने पीने की चीज है। आवर प्रोडक्ट मस्ट हैव द हाईएस्ट इंटेग्रिटी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ लेटेस्ट, ये शायद मैंने क्वेश्चन में बताई भी, ये मैं पीछे रिस्क की बात बता रहा हूँ, वो है ओशन फ्रेट। आजकल बहुत सी प्राइसेस जो है, बहुत सी चीजों की प्राइसेस बढ़ी है, किस वजह से? देखो फ्लक्चुएशन किस वजह से आई, बिकॉज ऑफ फ्रेट चार्जेस। The items coming from China, the items coming from, I'm talking about USA, China, Thailand, Vietnam, वहां से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब ओशन फ्रेट जो है ना, वो इतने टाइम से, इवन आफ्टर इफ यू टॉक अबाउट द कोविड थिंग एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इतना बैकलॉग जमा हो गया कि लोगों ने क्या किया, अल्टीमेटली द प्रोडक्ट प्राइस इज नॉट अप, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनी हुई है सब कुछ, या मे बी दे हैव द स्टॉक व्हिच इज रेडी टू शिप, लेकिन अब इतना प्रेशर बढ़ गया तो बोला क्या करें, दे हैव लिमिटेड यू नो द ट्रांसपोर्टेशन थिंग, फ्रेट चार्जेस बढ़ गए। That's the thing. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसको आप मेंटेन कर सकते हैं मे बी थ्रू सम फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दैट, और मे बी यू कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद योर सप्लायर जिसमें आप उससे एफओबी प्राइसेस और ये लें। आप बोलें कि भाई मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि आई एम गोना बाय फ्रॉम चाइना, you'll have to put me here either in Houston or California or somewhere, मुझे अपने पोर्ट पे माल चाहिए, and you take care of that traveling risk and fluctuation. मैं एक और बात भी यहाँ कर दूं, sometime जब आपकी प्रोडक्ट when you getting it from outside countries, दूसरे ममालिक उससे लेते हो, a big political risk जो आपको देखना होता है, especially when two countries have some sort of limited power, for example US and China, latest example। सबसे बड़ा मसला क्या है भाई, लोगों को यही तो देखते हो, वो ट्रम्प बोलता है कि भाई मैं चाइना की ऐप बंद कर दूं टिकटॉक, मैं चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूं, मैं चाइना की आइटम्स बैन कर दूं, और मैं चाइना के कोविड से परेशान। इसकी वजह से वी लुकिंग एट सो मेनी प्रोडक्ट्स, द प्राइसेस आर अप डाउन अप डाउन एंड अप अप अप। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कस्टमर्स, कंज्यूमर, रिटेल पार्टनर्स, इन सब चीजों के रिलेशनशिप ये सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, दे कैन मैनेज द रिलेशनशिप। क्यों? इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। वो क्या करें भाई, वो ऊपर से वो बोल देता है कि मैं इंपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा, दैट्स इट, खत्म। अब अब आप बोलेंगे कि सर वो चाइना से उठ के पहले पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान से शिप हो जाए, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट वेयर यू मेड इट। सही ना? ये नहीं है कि कहां से आ जाए, थाईलैंड से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, चाइना के प्रोडक्ट नहीं होने उस पर ड्यूटी लग जाएगी। तो उसकी वजह से फिर होता क्या, फिर चाइना को पीछे से माल अपना जो है ना वो कहीं और प्रोडक्शन प्लांट लगाना पड़ता है, और उसके बाद फिर डिसेंडेड वंस अगेन फ्लक्चुएशन इन ओशन फ्रेट एंड ऑल दैट। यहाँ पर भी देखो प्रोडक्ट है कोकोआ जो डिफरेंट जगहों से आ रही है, तो ये मैंने वैसे भी आपको बता दिया, इट्स नॉट ओनली अबाउट द चॉकलेट थिंग, मे बी यू हैव इन नियर फ्यूचर सम अदर केस, और उसके अंदर ये तो इट्स अ बिग जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ममालिक में चल रही है, ये बहुत अहम पॉइंट है, स्पेशली दीज टू कंट्रीज यूएस एंड चाइना, इनके बीच में एक बड़े वॉर है, ये ना इस बारे में। तो ये चीज खैर, let me remove it and then we talk about it. अच्छा, ये अब बात आई भाई प्रोडक्ट इंटेग्रिटी, इसमें तो यस द बिगेस्ट रिस्क, सबसे पहले तो आपने ये बात करनी है कि Dulce is dealing in what, talking about edible item, or when it's about especially the developed nation, when customer care about all these things, तो वहां पर तो जब when you talk about food and food related items, obviously the biggest risk is the product integrity, the product quality, the product दिस हेल्थ एंड फ्रेशनेस इश्यूज, ये सारी चीजें तो बहुत है। क्यों? क्योंकि अब इस रिस्क को जरा एनालाइज करें। If Dulce is facing this sort of risk, which we say is the product integrity and all that, what will happen? It is going to affect a high hit पड़ती क्या? Your reputation, your brand image, वो गया, अरे भाई इनके साथ तो ऐसे ही होता है। That's why some of the companies, ये बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, what they do when they have 3, 4, 5 or 6 products, or maybe hundreds of products, they come up with name of different companies and different brand names. क्यों? For example, the bad time comes with this product, with this brand image, और इसके साथ कोई ऐसे अनहोना सीन हो जाता है, so at least we can cover up all these products because they have a different corporate structure, they have a different management, and in the eyes of the world, we don't actually have the shared ownership or shared board of directors, shared brand name. Brand name भी अलग रखते हैं, companies भी पीछे अलग रखते हैं, सब कुछ, कि कल को ये आवाज भी ना आए कि the same parent company is holding these 2, 3 products, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा काम करते हैं, फिर ये हम उसमें कंट्रोल में बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि if the product integrity is in question, what will happen? The brand image is gone down, reputation, existing customers go out, can't find new customers, a big issue of legal suit file हो जाए आपके ऊपर,
maybe the big penalties, huge fine, maybe your GC going concern issue. GC means going concern issue. यानी आपकी ये long term sustainability, reputation, और I call it a big cost. सही ना, एक huge cost है for the revival. Sometimes ऐसा होता है कि rumors वगैरह इसकी वजह से भी होता है. यहाँ पर तो हम वो बात नहीं कर रहे. We talk about the real product integrity. अगर ऐसा कोई सीन आ जाता है तो फिर इसको बैक करना वो बहुत मुश्किल होता है. The companies they have to face big cost for it. सही है ना, वो financial cost भी है, non financial cost भी है, and there's so many things they have to do. ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इसमें चलती हैं. फिर उसके बाद बड़े बड़े लोगों को हायर करो and they become your advocate, और वो आगे से आपके लिए बयानात दें, और ये वो खैर it's very big thing. अच्छा, अब इसको how to minimize, इसको कैसे minimize करें? इसके लिए very important is regular quality control things. First of all, you need to place quality control things. So, quality control in terms of your process, आपका जो पूरा process है, and in terms of sourcing, from where you actually buying the stuff. किससे आप product buy कर रहे हो? किससे आप product buy कर रहे हो? उनके साथ regular आपका QC quality control या regular what I call regular audit. This is very important. Finding ethical supplier, good quality supplier, invest more on research and development in finding good suppliers कि उनकी अपनी भी quality control क्या है. ठीक है ना. अब मिसाल के तौर पे let's say the source you have is an underdeveloped nation, तो वहां पर क्या होगा? Ultimately the laws, the standards, the companies, the management, the culture, everything is casual. सही है ना, वहां पर तो कुछ भी हो सकता है. ये तो बिल्कुल साफ सुथरी सी बात है ना कि भाई एक जगह जहां पर रेस्टोरेंट खोलना एक डेवलप्ड नेशन में और एक अंडर डेवलप्ड नेशन जहां पर ब्राइबरी इज नॉर्मल, करप्शन इज नॉर्मल इन ऑफिशियल्स एंड एवरीवेयर, क्या होता है? एक एजुकेशनल कॉलेज खोलना, नेक्स्ट डे मुडवा, ओके, शटर ओपन, एजुकेशन कॉलेज स्टार्ट, देयर इज नो लॉज, नो रेगुलेशन, नथिंग. हॉस्पिटल खोलना कोई बड़ी बात नहीं होती. ये वो मैं बता रहा हूँ जो इसी तरह रेस्टोरेंट खोलना, दैट्स वेरी इजी. अंडर डेवलप्ड नेशन में रेस्टोरेंट खोलना कुछ भी नहीं, कहीं भी ढाबा खोलो है, यू गुड, उठाओ सुबह उठो और बेचना शुरू कर दो. लेकिन वही जितना रेगुलेटेड मुल्क होगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन, मेडिकेशन, फूड, ये वो बिजनेसेस हैं जिनका उठना बहुत मुश्किल होता है, जिनका बनना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन यू हैव ऑल दीज लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली इफ यू डीलिंग विद योर सोर्सेज, your raw material from where you're buying, you need to have good quality control audits वो चाहिए आपको, sourcing ethical supplier चाहिए, they have good quality control in place, regular audits चाहिए, plus in your own premises once again you have to have good quality control system. सही है ना, ये आपके भी good quality control system चाहिए. फिर यहाँ पर एक और बड़ी बात, because this risk you cannot eliminate it. सही है ना. अब जरा तवज्जो सुनना इस बात, और मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दी थी इसकी. देखो हम मानते हैं कि इसमें risk elimination नहीं हो सकती, but obviously you can minimize it. How? Through recalling. If you have a little doubt about your product or the batch in that particular product is present, क्या यार वो जो मार्च का बैच था उसके अंदर शायद कोई मसला हो गया. मैंने आपको शायद M&M की और दूसरी एग्जांपल भी दी थी, स्निकर्स नहीं, नॉट स्निकर, नॉट M&M, there's one more chocolate जो स्निकर्स की तरह होती है, सिर्फ उसमें से पीनट्स हटा दो, मैं नाम भूल रहा हूँ, ओफ आई डोंट नो. उसमें ये मसला आ गया था और इधर इन्होंने सारी रिकॉल कर ली थी, क्योंकि आपको पता होता है कि इन लेट्स से इन द मार्च बैच प्रोडक्शन वी हैव दिस थिंग, फॉर एग्जांपल कोई इनका फैन था, कुछ था कि उससे कोई चीज गिर गई है भाई इस प्रोडक्शन में, इस बैच में, या इस जो भी इसका मिक्सचर था या चॉकलेट थी, उसमें कोई एक प्लास्टिक या कोई एक मेटल, कोई ऐसी चीज आ गई. अब देयर वर thousands of chocolate in that batch and you supplied to Walmart and Target and all that, सही थी. अब क्या करें, पूरी ऑडिट ट्रेल तो होती है, बट वी नेवर नो कि वो जो पूरा मिक्सचर था उसमें वो मेटल का पीस किधर गया. अब एक तरीका तो ये है स्कीप साइलेंट, चलने दो, कैसे ढूंढे. लेकिन दूसरा ये है, स्पेशली व्हेन यू आर रेगुलेटेड, व्हेन यू हैव द सिस्टम एंड एवरीथिंग, हाउ अबाउट यू रिकॉल इट. देखो रिकॉल करना, यहाँ पर एक बात समझे, रिकॉल करने में बेइज्जती होती है, इतनी नहीं होती, इतनी नहीं होती, क्योंकि ये तो हमें पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चॉकलेट खुलेगी और जब कोई उसको बाइट लेगा तो उसके दांत पे उसमें जाके लगना है, क्योंकि चॉकलेट जो है ना वो ऐसे ही है जैसे इट्स लाइक फ्री, यानी इट्स लाइक अ मिंस मीट, नहीं होता है ना कि भाई वो तो कीमे की तरह है, तो उसको तो बंदा जब खा रहा होता है तो इजी हो गया, उसको तो थोड़ी पता कि अंदर कोई बोन निकलेगी या अंदर कोई मेटल निकलेगा, तो इसका मतलब ये आना है, इट्स गोइंग टू डैमेज इट एंड एवरीथिंग एंड इट विल कम इन पब्लिक. सही है ना, ये चीज आनी है, स्पेशली व्हेन यू आर विद बिग ओपन ट्रांसपेरेंट एंड हाईली वोकल कल्चर एंड सिस्टम, उसमें जब आप, अब क्या होगा,
अगर आज उस बैच को हम रिकॉल करने की आवाज दे दें, देखिए इस बात को जरा समझे क्योंकि मे बी इन फ्यूचर आपके पास पेपर्स में भी आ सकता है। रिकॉलिंग, डज इट अफेक्ट योर रेपुटेशन? यस। क्या है यार कुछ, व्हाई रिकॉलिंग, व्हाई दिस कॉल इट, बट रिकॉलिंग इज अ नॉर्म नाउअडेज, इट इज समथिंग नॉर्मल। बड़ी बड़ी गाड़ियां रिकॉल होती, कितनी दफा ये मैंने, मेरी तो दो तीन तीन गाड़ियां ब्रांड न्यू रिकॉल हुई कि भाई ये मसला है गाड़ी में, एंड आफ्टर दिस सो मेनी रिसर्च वर्क एंड ऑल दैट we want you to bring your car, sometimes complete product recall होती है कि भाई पूरी गाड़ी हम रिकॉल करेंगे and we'll get you a new car right away, जितने भी कस्टमर हैं, क्योंकि उसके अंदर ये सेफ्टी इशू है। और कभी कभार क्या करते हैं, they give you a free fixing of that particular thing, सही है क्या भाई इसके यहाँ ये थोड़ा सा मसला है, आप ले आए और हम फिक्स कर देंगे, खत्म, ये तो नॉर्मल है। तो रिकॉलिंग इज नॉट अ बैड थिंग nowadays, it's a normal thing, it's actually you're more transparent, you are more caring actually, you make more caring of your customer, कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो। देखिए दोनों रिस्क, एक है कि अगर इफ यू रिकॉल इट, तो मुझे पता है कि भाई इतनी बड़ी आवाज आती है, यू अनाउंस इट इन द मीडिया एंड एवरीवेयर, और सारी गाड़ियों को और सारी चॉकलेट्स को रिकॉल करोगे, कितनी चॉकलेट्स होंगी, इन्होंने की थी रिकॉल। मैं कह रहा हूँ ना, टमाटर रिकॉल करते हैं कभी कभार, कभी कभार पोटैटो रिकॉल करते हैं, कभी कभार सब्जी, ये वो सब कुछ रिकॉल करते हैं, दिस इज अ न्यू नॉर्म नाउअडेज। लेकिन दूसरा रिस्क क्या है, अगर आप रिकॉलिंग नहीं करो और खामोश रहो, और अगर ये चीज सामने आई, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई चीज हुई है, लेट्स से वी टॉक अबाउट द चॉकलेट एंड एवरीथिंग, उसके बाद तो बस फिर आप अपनी फ्लैट बनाए, फिर जो कॉस्ट होगी ना उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, टू हाई, मे बी इट्स गोना अफेक्ट योर होल बिजनेस, रूइन योर होल बिजनेस, सब कुछ क्रैश कर दे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी, दैट real time audits, real time look up your quality, do some sampling thing, and once you get a little doubt, एक थोड़ा सा डाउट, अच्छा ये भी तो हो सकता है यार ये मेटल पीस इसका टूटा है, हो सकता है इधर ना गिराओ, कहीं बाहर गिराओ और फिर अब कचरे में चला गया, लेकिन what are the chances, what are the probability, even if the probability is low, still you better recall it, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, अगर आपने रिकॉल कर लिया, सारी चॉकलेट खोल के देख ली, उसमें भी कुछ नहीं, तो फिर भी बच गए ना। रिकॉल करने से क्या होता है, यू लुक मोर ट्रांसपेरेंट, यू लुक more of honest organization, ethical organization, integrity आपकी नजर आती है, सही है ना। अच्छा आपने रिकॉल का नोटिस दे दिया और उसके बाद किसी के दांत में वाकई में वाकई फंसा, तब भी आप, यू आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी। आप क्यों सेव हुए, आपने कहा भाई देखो हमारा नोटिस आ गया था 2 सितंबर को, एंड दिस केस हैपेंड ऑन 5 सितंबर, सो वैसे हमने तो पहले अपना नोटिस दे दिया। तो ये चीज रियल टाइम, यानी कस्टमर को रिकॉलिंग और ये सारी चीजें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज दिस प्रोडक्ट इंटेग्रिटी रिस्क। और वैसे तो ओवरऑल कोशिश की जाए high quality standards in terms of process, in terms of sourcing, regular audits, and all that. Last question. इसमें लीगल सूट और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हैं। What is the last risk? And there you go. We depend on the skills, enthusiasm, and well-being of our staff. Oh, okay. Workforce, labor. Not only the labor, we depend on their skills, their enthusiasm, and all that. Poor staff management or lack of skills in our whole team could result in the loss of competitive advantage, obviously, derived from our highly skilled staff, or the loss of staff to competitors. We rely heavily on the loyalty and commitment to our staff. सही है, very important risk, especially अगर हमने पहले भी देखा था in the previous requirement, labor. Okay, Dulce, especially when you talk about their specialty chocolates. Their specialty chocolates, their handmade chocolates, their luxury chocolates, it's all dependent on labor. Let's say we already employees, they are the key assets. What's the problem? Risk कैसा होता है? Risk ये होता है, if when you have the skilled workers, when they require training and all that, and you develop your skilled workers, उनको आपने बढ़ा दिया, skill सब कुछ दे दिए. Once they leave the organization, what is the first door they step in? That's the competitor. सीधी सी बात है, सीधी बात है। देखो अगर एक कॉलेज से टीचर जाता है और उसके बाद वो जाके प्रॉपर्टी का काम शुरू कर देना, वी डोंट माइंड, तो बोलते हैं ठीक है यार चला गया, एटलीस्ट इज नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, हमारा कॉम्पिटिटर नहीं बन रहा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। व्हेन यू आर स्किल्ड पर्सन, लेट्स से यू आर एन अकाउंटेंसी फर्म, ऑडिटिंग फर्म, और मे बी कोई एक्स्ट्रा, जैसे मैंने टीचिंग की बात की, मे बी हॉस्पिटल या कोई भी, जब भी आपका मेजर बंदा बाहर जाता है
तो he or she normally joins and welcome by the competitor. उसको competitor ही offer करता है ना, lucrative offer देता है, कोई चीज बड़ी गाड़ी देता है, कुछ भी देता है, just to get it, सही ना, क्योंकि उसके पास आपकी सारी information भी होती है, all your strategic information, skills, सारी चीजें उसके पास मौजूद होती है, and he's the right guy. यानी actually you developing your asset, but somebody else is getting the benefit. So that's the big risk. Labor, when Dulci is dependent on skilled workers, it means they spend lot of amount on their training cost. वो सारी cost क्या हो जाएगी if you leave the if your labor leaves you, or if your labor is not motivated, or maybe your labor turnover rate is high, ultimately your training cost and your recruitment and selection cost will become, I call it a sunk cost. वो डूब गई आपकी पूरी cost, सही है ना, यानी जो asset आपने बनाया था, it will become a sunk cost. And second very important thing is not only it become a sunk cost, आपका loss तो हुआ, but ultimately who enjoys? Your competitor. The competitor takes all the benefit. इस तरह analyze करना है आपने इसको, कि आपने जो advertisement दी थी and you had the interviews and you hired people and made the team and motivate them and all that. Once the labor turnover rate is high and people going out, पता चला enjoy कोई और कर रहा है, and all your cost which you actually spend on recruitment, selection, interview, training, appraisal, bonus plan and all that, वो सब क्या हो गई? वो सब sunk cost हो गई. तो आपके competitor ने benefit भी लिया, plus what's the another risk? The big risk, bigger than this, arrangement of labor now. अब एक जो बैच छोड़ के चला गया और लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या होगा? अब नई टीम पैदा करना वो एक बड़ा मुश्किल काम है, यानी उस टाइम पे you actually lose your revenue, your opportunity cost, your competitor enjoying, you are running out of things. और आपने देखा भी in the BB supermarket case, in the वो जो ई से जो नाम था, क्या था वो जो दूसरा बंदा जो आपका रिटेल पार्टनर, they were looking for the chocolates, you had the raw material, you had everything, when you're running out of स्किल लेबर आवर्स, सही है ना, वो आपके पास नहीं थे. तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिस्क कि आपका इदारा व्हेन यू आर डिपेंडेंट, स्पेशली व्हेन यू आर मेकिंग चॉकलेट्स, हैंडमेड चॉकलेट्स, जो हैंडमेड और लग्जरी ऐसी चॉकलेट्स बन रही है, व्हेन यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन दैट, तो वहां पर क्या हुआ आपके पास? दिस अरेंजमेंट ऑफ लेबर, इट्स अ बिग थिंग. फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन योर लेबर इज नॉट excited and full of enthusiasm and energy and motivation, obviously it become inefficient. वो inefficient हो जाती है, और inefficiency क्या होगी? It will leads where? Inefficiency आपको कहाँ लेके जाएगी? कहाँ लेके जाएगी? Ultimately you can fulfill the demand, you can have good production, smart production नहीं हो सकेगी, and ultimately your customers are dissatisfied. और ये तो बड़ी clear बात है ना. If your employees are not trained, if your employees are not motivated, ultimately they're going to affect your customer relationship. क्योंकि जब employee नाराज होता है, तो वो जब उसको grievances होते हैं और वो motivated नहीं होता, तो वो क्या करता है? वो boss को कुछ नहीं कह सकता, not to the senior manager or the peer worker. एक ही जगह है जहाँ पर वो काम खराब करता है, and that's the product and the customer. That's it. How can I minimize this risk? ठीक है भाई, कैसे इस रिस्क को मिनिमाइज करें? इस रिस्क को मिनिमाइज करने का एक बड़ा अहम तरीका तो यही है कि अ गुड हेल्दी एचआर मैनेजमेंट. नीड टू हैव, जैसे मैंने उसमें कहा था ना, यू नीड टू हैव गुड स्टॉक मैनेजमेंट, अ गुड एचआर मैनेजमेंट लाइक अट्रैक्टिंग गुड एम्प्लॉइज, हैव अ गुड एचआर इन्वेंटोरी. अब आप बोलेंगे यार एचआर इन्वेंटोरी, हाँ एचआर इन्वेंटोरी भी होती है. यू नीड टू हैव गुड सक्सेशन प्लानिंग. आपके जो एग्जिस्टिंग स्किल वर्कर्स हैं, what is their job? They need to replica new team, backup team, फिर एक और backup team, ऐसी teams होनी चाहिए. Invest good amount in training and development, उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे. Good investment in their motivation, in their counseling, in their performance appraisal, healthy feedbacks. ये सारी वो चीजें हैं जिससे क्या करना होगा, आप अपने इस रिस्क को मिनिमाइज करोगे. एक तो attract good people, not only good people, then you have to replicate कि भाई जो existing unskilled है उनको skilled में convert करना है, so that you can have a backup plan कि ये हटे तो दूसरे मौजूद हो पीछे. And then एक और चीज भी हो सकती है कि अब ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि भाई जैसे आपका इदारा डिपेंडेंट है लेबर इंटेंसिव, बहुत सारे डिपार्टमेंट दे आर लेबर इंटेंसिव, तो हाउ अबाउट यू go more towards and try at least to go towards automation. कि कई चीजें ऐसी जो ऑटोमेशन, बट समटाइम ऑब्वियसली यू आर डिपेंडेंट ऑन योर एम्प्लॉइज, जैसे उसने कहा हैंडमेड चॉकलेट्स और ऐसी लग्जरी चॉकलेट्स, तो ये सारी चीजें भी. तो इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या, इन्वेस्ट मोर ऑन ट्रेनिंग, गिव देम मोर स्किल्स, regular review of their payments. Yes, that's the point. And some organization they become a paymaster कि भाई अगर एम्प्लॉय में छोड़ के भी गया, he'll come back, उसको पता है मार्केट में वो ऐसा रेट दे ही नहीं सकता, so you'll need to be very a good paymaster.
क्या आप अच्छे रेगुलर रिव्यूज करते रहे, लुकिंग एट द एनवायरनमेंट, लुकिंग एट द लीगल मिनिमम वेज रेट, लुकिंग एट द by performance appraisal, क्योंकि सारे एम्प्लॉय को भी देखना है, by looking at their skill and their performance and their efficiencies, and according to that you give them. यानी जिसके लिए टर्म यूज होगी, don't go for equal thing, go for equitable, यानी सबको बराबर ट्रीट नहीं करना बल्कि equitable करना है by looking at their input. और ये चीज क्या होती है, ये this is actually a motivating factor, fairness, कि जैसा तुम्हारा इनपुट होगा जैसा, यानी fair days work for a fair day's pay. If you want a handsome salary at the night, you need to be very smart in the daytime. ये चीज एक बहुत मोटिवेट करती है. फिर अदर इंसेंटिव भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ एंड ऑल दैट. ठीक है, ये सारी बातें क्या है, दिस इज गोइंग टू एक्चुअली मिनिमाइज द रिस्क ऑफ HR. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है इनके लिए. ऑलराइट, स्लो जा रहे हैं हम लेकिन नो प्रॉब्लम. अब आ जाए जरा क्वेश्चन पे. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, और जिसमें उसने बता दिया, द ऑडिट एंड रिस्क कमिटी इज आल्सो अवेयर, इट्स अबाउट द चाइल्ड लेबर. अब ये चाइल्ड लेबर वाली बात आ गई. द ऑडिट एंड रिस्क कमिटी इज आल्सो अवेयर ऑफ डिस्कशन फ्रॉम अ सीनियर लीडरशिप टीम मीटिंग रिगार्डिंग द यूज ऑफ चाइल्ड लेबर. और आपने देख भी लिया, उस पर पूरा आर्टिकल आया किस तरह कोकोआ इंडस्ट्री काम कर रही है. Farms supplying the chocolate manufacturing industry. Now it's about the whole industry, it's not only about you. At this meeting, which you also attended, you as a consultant, there was a discussion regarding Dulce's response to finding. But Dulce is also one of the players, and they're also getting cocoa. Zahir hai, usme bhi child labor use ho rahi hai. They're not using child labor. Child labor is used by their sourcing, जो पीछे farmers हैं और. Okay. अब इसमें तीन लोगों ने अपनी अपनी राय दी. एक है HR डायरेक्टर, एक है ऑपरेशन डायरेक्टर, ओके, एंड वन इज द फाइनेंस डायरेक्टर. ठीक है ना, तीनों ने अपनी अपनी राय दी. Let me change the color. There you go. The operation director stated that no response is needed as most customers are unaware of the issue. सही है, ये कहता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं. हाँ, अच्छा देखो, इन्होंने पहली रिक्वायरमेंट आपसे पूछी, पता क्या, आइडेंटिफाई हाउ ईच response suggested by 3 directors would be categorized using an appropriate risk management framework. आप लोगों को पता होगा ये फ्रेमवर्क के. अब जरा तवज्जो सुनिए इस बात को, मैं आपको एक छोटा सा क्विक लेक्चर दे दूं इसमें. देखें, आप यू नॉट ओनली आइडेंटिफाई द रिस्क, all risk are not equal. बात को जरा समझे, तमाम रिस्क एक जैसे नहीं होते. It's same like all the processes are not equal. मैंने अपने लेक्चर्स में बात की है, all the stakeholders are not equal. Same case, all the risks are not equal. ये नहीं कि सारे रिस्क एक जैसे. एक इदारे को बेड डेट्स का भी रिस्क है, फ्रॉड रिस्क भी है, यू हैव दिस कैटास्ट्रोफिक इवेंट, अर्थक्वेक का रिस्क भी है, बहुत सारे रिस्क है ना, सही है ना, हेल्थ रिस्क है, सारी चीजें. ऑल रिस्क आर नॉट इक्वल. सो व्हाट यू डू, नॉट ओनली यू आइडेंटिफाई द रिस्क बट यू असेस द रिस्क. कैसे असेस करते हो रिस्क को, लुकिंग एट देयर प्रोबेबिलिटी, देयर लाइकलीहुड कि ये रिस्क कितना फ्रीक्वेंट हो सकता है, एंड देन यू लुक एट द कॉन्सिक्वेंसेस. फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक कितना खतरनाक रिस्क है, कितना खतरनाक रिस्क है, क्यों, बाय लुकिंग एट देयर कॉन्सिक्वेंसेस. अगर आप उसके कॉन्सिक्वेंस देखो तो उससे ज्यादा डेंजरस रिस्क कोई नहीं है. व्हेन यू सी द अर्थक्वेक, द होल इकोनॉमी इज क्रैश्ड, सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये वो, फिजिकल हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह कर देता है. कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है. लेकिन अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी देखो इन अ नॉर्मल आइडियल वर्ल्ड, इट इज नथिंग. तो इसका मतलब होता क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द रिस्क असेसमेंट, आप सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते, क्योंकि अगर कॉन्सिक्वेंसेस को देखें तो वी कैंट एंटर इन आवर ओन हाउस. हम तो डरते, रात को नींद नहीं आएगी, फिर घबरा जाएंगे, बिल्डिंग में घुस ही नहीं सकते, ऑफिस में वी कैन वर्क, बिकॉज वी एवरी टाइम वी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक. लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है दैट द होल रिस्क फैक्टर इज डाइल्यूटेड. वो खत्म कर देती है, क्योंकि आप कभी सोचते नहीं, प्रोबेबिलिटी उसकी कुछ भी नहीं होती. वेरी वेरी माइनर. मैं ये नहीं कहूंगा नेगेटिव, लेकिन मैं कहूंगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है कि यू डोंट केयर एंड यू जस्ट लिव इन द बिल्डिंग. कभी भी अपने छत के नीचे रहते हुए, मैंने पढ़ा था, सोचा ऐसा कि कोई भी आ सकता है. क्यों, माना कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क असेसमेंट, वी एक्चुअली लुक एट बोथ द फैक्टर, कि यार इस काम की इस रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. सही है, बात समझ रहे हैं. और इसके लिए आपके पास बड़ा सीधा साधा फ्रेमवर्क है, तारा फ्रेमवर्क, ट्रांसफर, एक्सेप्टेंस, रिडक्शन एंड अवॉइडेंस. सही है ना, कि आप क्या करते हो. अब फिर सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द रिस्क. एक दफा रिस्क से हेलो आय हो गया, शनाख्त हो गई, हैंडशेक हो गया, देन यू असेस द रिस्क. सही है ना, बाय लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेस एंड ऑल दैट. एंड वंस यू असेस द रिस्क, जैसे ऑपरेशन डायरेक्टर ने असेस किया, जैसे HR डायरेक्टर ने असेस किया, जैसे फाइनेंस डायरेक्टर ने असेस किया, नाउ यू गिव आंसर टू द रिस्क. आप रिस्क को जवाब देते हो. फिर और जवाब कैसे देते हो, कोई जवाब देता है
कंट्रोल लगा के यानी रिडक्शन, कोई कहता है इसकी इंश्योरेंस करा दो यानी ट्रांसफर कर दो, कोई कहता है जैसे चल रहा है चलने दो यानी एक्सेप्ट कर लो, कोई कहता है नहीं 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 इस एक्टिविटी में बंद कर दो, अवॉइड कर दो। तो यू हैव दीज ऑप्शन, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट वाज जस्ट अ रिकॉल ऑफ दिस ऑफ द पेपर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। से खैर अब हम यहाँ पर अपने केस पे आते हैं। केस में उसने पहली रिक्वायरमेंट तो आसान सी दे दी, लेकिन मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ। द ऑपरेशन डायरेक्टर स्टेटेड दैट नो रिस्पॉन्स इज नीडेड। इसका मतलब वो पता क्या कह रहा है, उसको कह रहा है यार जो चल रहा है चलने दो। इसका मतलब आप फौरन समझ गए कि ऑपरेशन डायरेक्टर ये कह रहा है कि एक्सेप्ट रिस्क, कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं उसको एक्सेप्ट करना। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं, लाइफ में भी ऐसे होती है यार, कुछ रिस्क को एक्सेप्ट करना होता है यार। हाँ बाइक चलानी है भाई, रिस्क तो होता ही है, एक्सेप्ट करो यार, बस क्या करेंगे। तो एक तो ये बात होगी कि आप जब दुनिया में आए हो तो कुछ रिस्क एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो उसने कहा द ऑपरेशन डायरेक्टर इज सेइंग दैट नो रिस्पांस इज नीडेड एज मोस्ट कस्टमर्स आर अनअवेयर ऑफ द इशू एंड द यूज ऑफ चाइल्ड लेबर इज अ कॉमन अमंग्स मोस्ट कोकोआ फार्म एंड इज एक्सेप्टेड practice। देखा वो कह रहा है accepted is the risk acceptable। However, the HR director insisted that this risk must be removed at all cost and that Dulce must stop using all cocoa farmers who use child labor immediately and look for new cocoa farmers। यानी वो कह रहा है कि हम तो इस रिस्क के साथ चल ही नहीं सकते, हम तो इसको अवॉइड करेंगे। वो अवॉइडेंस कह रहा है ना कि यार इमीडिएटली व्हाटएवर द कॉस्ट यू बेयर, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस अरेंजमेंट विद द कोकोआ फार्मर्स। हमें बिल्कुल नए चाहिए वेयर देयर इज नो चाइल्ड लेबर एट ऑल, यानी इस रिस्क के साथ जिंदगी गुजारनी ही नहीं है, जस्ट अवॉइड इट, यानी अभी अभी बाइक बेच दो, खत्म। द फाइनेंस डायरेक्टर सजेस्टेड that Dulce should continue to use its cocoa farmers, but that it must control and monitor them more effectively to maintain ethical। यानी वो कह रहा है रिडक्शन, रिड्यूस करो इसको, कि यार इसके साथ हम गुजारा भी कर रहे हैं, करेंगे गुजारा, लेकिन कहीं ना कहीं वी नीड टू रिड्यूस इट। देखिए अब जरा बात को समझे पहले, जो आपका एचआर डायरेक्टर है और जो आपका ऑपरेशन डायरेक्टर है, दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम एंड्स। यस, दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम एंड्स। एक कह रहा है कंप्लीटली इसको अवॉइड करो और एक कह रहा है कंप्लीटली एक्सेप्ट करो, यानी एक कह रहा है कुछ भी ना करो और एक कह रहा है यार इसको खत्म ही करो, दैट्स इट, एंड ऑफ द एक्टिविटी। जबकि फाइनेंस डायरेक्टर जो है ना वो बात कर रहा है एक मीडियोकर बात, एक बैलेंस्ड बात कर रहा है, सही ना, ये वाली बात कि ठीक है बाइक चलानी है, बट हाउ अबाउट लेट्स राइड इन द डे टाइम, और इफ यू आर राइडिंग इन द नाइट टाइम अच्छी सारी चीजें हो, रेडियम वेडियम ये वो, हैव सम all gears, wear some helmet and all that, ये क्या, what's that, that's you actually, you are not only avoiding the risk and you're not completely accepting it, but you actually managing it somewhere, balance कर रहा हो। ये बात कर रहा है फाइनेंस डायरेक्टर। आपसे रिक्वायरमेंट क्या पूछिए, आइडेंटिफाई, पहले वाले में तो सिर्फ सिंपल आइडेंटिफाई नहीं, पहले बोला यू हैव बीन आस्क्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट एंड रिस्क कमेटी टू प्रिपेयर 3 प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। देखें सिर्फ स्लाइड्स नहीं बनानी है, स्लाइड बना दे तो मामला आसान हो गया, ठीक है ना, कि आपने ये स्लाइड बना के दे दी इस तरह, ये स्लाइड बन गई। अच्छा, लेकिन स्लाइड के साथ क्या बोल रहा है, विद डिटेल नोट्स, अकम्पनिंग नोट्स, के उसके नीचे एक्सप्लेनेशन फॉर प्रेजेंटेशन एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। व्हाई दे टॉकिंग अबाउट द स्लाइड, यही तो एसबीएल का पेपर है, ताकि अगर एक बंदा है जिसने सिर्फ जस्ट लुकिंग एट द पेजेस, तो वो ये देखना चाहे कि हाँ भाई स्लाइड में क्या लिखा है। यानी आपने स्लाइड में करना ये होता है कि लेट्स से यहाँ पर इसने पहली बात बोली ना कि पहली रिक्वायरमेंट क्या बोली, आइडेंटिफाई हाउ ईच रिस्क रिस्पॉन्स सजेस्टेड बाय 3 डायरेक्टर्स वुड बी कैटेगराइज्ड। ये तो बड़ी सिंपल सी स्लाइड हो गई, तारा फ्रेमवर्क, कि एक ने रिड्यूस वाले ने क्या बोला है भाई, वो है आपका एफडी फाइनेंस डायरेक्टर, उसने रिड्यूस पे बात की। आपका जो ऑपरेशन डायरेक्टर है ओडी, उसने क्या कहा कि लेट्स एक्सेप्ट इट, ठीक है। आपका जो एचआर डायरेक्टर है उसने क्या कहा भाई, लेट्स अवॉइड इट। खैर ट्रांसफर पे किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। अब देखो स्लाइड से फायदा ये होता है कि यू बिकम मोर एफिशिएंट एंड मोर स्मार्ट, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द बोर्ड मीटिंग, कि एक बंदा पूरी डिटेल नोट्स को नहीं देखना चाहता, उसने सिर्फ इस स्लाइड को देख लिया तो उसको पता चल गया कि ओके व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर एंड व्हाट द ऑपरेशन डायरेक्टर इज सेइंग एंड व्हाट दिस गाय एचआर इज सेइंग, सही है। तो एक तो ये, लेकिन तीनों रिक्वायरमेंट में उसने आपसे क्या कहा कि आई नीड स्लाइड्स, क्योंकि ऊपर जो लाइन लिखी है ना वो इन तीनों रिक्वायरमेंट के लिए यू नीड टू प्रेजेंट स्लाइड्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी, और वो एक्सप्लेनेशन असल में मैं दे चुका हूँ। पहली रिक्वायरमेंट इज वेरी सिंपल, जस्ट 4 मार्क्स। Yes, according to the finance director, why we using this TARA framework? According to the finance director, we need to put some sort of controls. कोई कंट्रोल अभी बताए नहीं, आपको बताने होंगे, some sort of controls, and we can balance it. But as for operation director,
because he's saying ऑपरेशन डायरेक्टर क्या कह रहा है कि when the probability is low कि भाई किसी को कुछ पता ही नहीं है, इस चीजों पे कोई कुछ नहीं बोलता, और बोला जब पता ही नहीं चल रहा तो फिर consequences भी क्या कुछ भी नहीं होंगे, and this is a normal practice, let's accept it। तो ये बात, ये explanation। HR वाला क्या कह रहा है ना, we have to avoid it, हमें किसी भी हाल में इसको अवॉइड करना है। उसने ये वाली सारी बात की ना, at any cost whatever the cost we bear and all that। ये तो है पहली रिक्वायरमेंट जिसमें सिंपल स्लाइड बनाई, लेकिन जो दूसरी और तीसरी रिक्वायरमेंट है उसमें we need to talk about separately for each guy। ठीक है, क्या लिखा है, evaluate the appropriateness of risk response of the operation director and the HR director। और तीसरे रिक्वायरमेंट में क्या है, फाइनेंस डायरेक्टर। यानी दो आखिरी दो रिक्वायरमेंट भी मोर और लेस सेम है, लेकिन तीनों अलग बंदों पे बात करनी है। अब जरा देखिए, यूं करके बात करनी है कि पहले आपने एक स्लाइड बनाई, स्लाइड में ये स्लाइड, दिस स्लाइड इज फॉर लेट्स से ऑपरेशन डायरेक्टर, दिस स्लाइड इज फॉर ऑपरेशन डायरेक्टर। ठीक है, ऑपरेशन डायरेक्टर के लिए स्लाइड, और ऑपरेशन डायरेक्टर ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन डायरेक्टर, मैं फिर पढ़ लूं, गलती ना कर लो, द ऑपरेशन डायरेक्टर स्टेटेड दैट नो रिस्पांस इज नीडेड। इट मींस ऑपरेशन डायरेक्टर ने कहा है एक्सेप्ट दिस रिस्क, स्लाइड में आपने लिख दिया एक्सेप्टेंस, और क्यों उसने कहा है उसके दो लाइनें आपने लिख दी। व्हाई इट्स सेइंग एक्सेप्टेड, क्योंकि मोस्ट कस्टमर्स आर अनअवेयर कस्टमर, और दूसरा of the student it is common, it's a common practice। ठीक है, अब आ जाए, अब जरा बात को समझें। let me go here, okay, अब जरा तवज्जो सुने इस चीज को। जब आपने एक दफा स्लाइड बना दी, अब आपने नीचे नोट्स लिखने हैं इसकी, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन पर नीचे लिखनी है, देन यू विल गेट द मार्क्स। विद जस्ट स्लाइड यू वोंट गेट अ थिंग, सही ना, और सिर्फ एक्सप्लेनेशन से ही मजा नहीं आएगा। तो उसने कहा कि भाई एक स्लाइड बना दो, ताकि इफ समबडी वांट्स टू सी जस्ट द स्लाइड इन द बोर्ड मीटिंग, तो उसको भी पता चल जाए कि व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ ऑपरेशन डायरेक्टर। नाउ मैंने आपको भी कहा कि आपने इसे लिखा है इन दुलसी बोर्ड मीटिंग, और एज पर ऑपरेशन डायरेक्टर, एज पर ओडी ऑफ दुलसी, this is an experiment, this risk response strategy is an experiment। why experiment? Because OD is saying, operation director is saying that we should go with this risk, यानी go with the risk। वो कह रहा है रिस्क के साथ चलते रहो, and this risk is nothing for us, सही ना। why उसने कहा because there is no other way, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, everybody is using it, we'll be using it। हाँ, हम भी यूज करेंगे जैसे बाकी यूज करें। दिस इज द मेंटालिटी, आपने पहले इस तरह तभी मान लिया। when everybody is using it and we have no other option, और customers are unaware, क्योंकि उस आर्टिकल के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो customers just enjoying the chocolate and they are unaware of it। तो बोला there is, as such there is no risk, so we should accept it। आप बताइए कि क्या ये जो इसकी रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी है, क्या ये ठीक है? एक सेकंड के लिए सोचें, तो हम बोलेंगे भाई ये बहुत एक्सट्रीम एंड है, एंड इट्स नॉट गुड। रीजन, कितना बड़ा रीजन उसमें ये है, ये मैं पहले भी कहता हूं हमेशा, जब तक अपने आप को बीमार तस्वर नहीं करोगे, यू नॉट गोइंग टू सी द डॉक्टर, यू नॉट गोइंग टू टेक द स्टेप, कोई स्टेप भी नहीं लोगे, कोई डॉक्टर को नहीं दिखाओगे। आप जरा देखें इस सवाल के शुरू में ही इन द थैंक यू, इस सवाल के शुरू में ही इन द सेकंड और थर्ड रिक्वायरमेंट, सॉरी सेकंड और थर्ड रिक्वायरमेंट कह रहा हूं, सेकंड और थर्ड पेज पे शुरू में ही उसने बता दिया था हमारा स्ट्रेटेजिक एम, हमारी वैल्यूज। अगर आप एक नजर देख लें, मैं भी जाके देख लेता हूं, ये एक मिनट में पता चल जाएगा। यस, we aim to develop our product range and markets by focusing on offering customer all that। okay, नहीं, नीचे जाए, what we believe, कितनी सारी एथिकल बातें उसमें लिखी हैं। अब आप मुझे बताएं कि if we go with this operation director who is saying that do nothing, ये सब कुछ चलने दो, it means it is going to be a dysfunctional thing। ये तो एक बहुत ही dysfunctional बात होगी, और किसके अगेंस्ट जा रही है? It is going against our belief, ये वाली बात आपको लिखनी है। It is going against our belief if we do nothing। That's why we're not going to accept this operation director or the opinion of operation director। One, it is an experiment। Second, it's a very casual attitude for this corporate organization कि जहां पर हम बात कर रहे हैं कि we talk about ethical sources, we talk about values,
ऑपरेशन डायरेक्टर का ये जो कहना है, इट इज गोइंग अगेंस्ट आवर बिलीफ, आवर एथिकल वैल्यूज, एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एज वेल। इन केस क्यों? क्योंकि इसमें हम ये कर रहे हैं कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस रिस्क एनीमोर इन द फ्यूचर, इन द बोर्ड मीटिंग, इन द मैनेजमेंट, एनीवेयर। हमें इस पर बात ही नहीं करनी है अभी जिंदगी में। इसका मतलब इफ वी ऑफ दिस ओडी गाय, even if we come up with any risk management activity और हमें कोई चीज ऐसी नजर भी आएगी, minimization or any other option, if we find it, we'll have our eyes closed, क्योंकि हम तो अपनी आंखें बंद कर चुके हैं in the board meeting कि this is no more a risk. So that's why we are not going to accept this OD thing. ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं जो प्रैक्टिकल बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये बात पहले भी की थी, लेकिन यहाँ मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। ये देखिए, मेड इन चाइना। आपको पता है ऐसे बड़े ग्रुप्स तो हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं, सब कुछ है कि इफ यू सी, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस, इफ यू सी एनी प्रोडक्ट इन चाइना, मेड इन चाइना प्रोडक्ट हियर, बड़े बड़े ग्रुप्स और ऐसी बहुत सारी कैंपेन्स हैं जो इसके अगेंस्ट है कि भाई हमें ये नहीं चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बांग्लादेश की भी नहीं चाहिए, पाकिस्तान की भी नहीं चाहिए, इंडिया की भी नहीं चाहिए, वियतनाम की भी नहीं चाहिए, देयर सो मेनी ऐसे ग्रुप। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं पर्सनल लेवल पे लोगों को जानता हूँ जो बाकायदा इफ दे बाय एनी प्रोडक्ट एंड दे सी इट्स मेड इन वियतनाम और मेड इन चाइना, इमीडिएटली दे रिटर्न इट, बोलते नहीं रखेंगे। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली उनसे पूछा व्हाई, वो एक ही बात करते हैं, बोलते हैं ये अपने जियोपॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह, बोला दीज कंट्रीज एक्चुअली दे डोंट केयर अबाउट ह्यूमंस। सच भी बोलते हैं, बोला द वर्किंग कंडीशन, द स्वेट शॉप कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड। ये बिल्कुल सच साफ सुथरी बात है। दे डोंट केयर अबाउट द एजुकेशन ऑफ द किड्स, किड्स एक्चुअली स्टेप इन द ऑक्यूपेशन बिकॉज ऑफ दिस पार्टी एंड ऑल दैट, एंड वंस ड्यू टू पार्टी व्हेन दे आर आउट, और जब वो आ जाते हैं उसके बाद देयर सेट इदारे ये वो इनका कभी ख्याल नहीं रखते, देयर फैमिलीज, देयर हेल्थ, कुछ भी ये सब पता है। तो इसीलिए बहुत लोग जो हैं दे एक्चुअली बायकॉट दिस थिंग, इनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं, क्लियर कट एट पर्सनल लेवल। तो अब आप जरा सोचिए, इफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू डोंट केयर अबाउट दिस, मैंने आपको बांग्लादेश वाली एग्जांपल भी दी थी इन माय फर्स्ट मीटिंग जो हमने की थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि फैक्ट्री बांग्लादेश में गिरी और प्रॉब्लम किधर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ डेज व्हेन यू टॉक अबाउट दीस डेवलप्ड नेशंस, देयर ब्रांड एंड देयर प्रोडक्ट, शुरू में तो ये बहुत मजे कर रहे थे, आज भी मजे कर ही रहे हैं, लेकिन आज इनके ऊपर ये प्रेशर बहुत सारा है ड्यू टू दिस एनजीओज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दैट प्रेशर कि भाई व्हेन यू डूइंग दिस सोर्सिंग थिंग, व्हेन यू आर आउटसोर्सिंग, व्हेन यू ऑफशोरिंग, बिकॉज ऑफ योर कॉस्ट down, you need to down the cost and you doing all these things, but be careful, you're dealing with people, dealing with the suppliers, with the farmers and all that, कि जहां पर एटलीस्ट कोई मिनिमम वर्किंग कंडीशन हो, मिनिमम वेज, वो सब तो दो, क्योंकि तुम तो अपनी सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे बात कर रहे हो, यू डोंट केयर अबाउट ऑल दीस थिंग्स। तो माना, ये बात माननी पड़ेगी कि अब ये आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए। मैंने आपको पहले एक बताया ताकि आपका थोड़ा माइंड मेकअप हो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन डायरेक्टर एंड द एचआर डायरेक्टर। ठीक है, और ये बात आपने लिखनी है कि भाई देयर आर सो मेनी फोरम्स, देयर आर सो मेनी कैंपेन्स, देयर आर सो मेनी एनजीओज, और ये सब they're doing this thing, सही नहीं, हर लेवल पे कर रहे हैं, whether it's about the car, it's about the clothing, edible item, कुछ भी हो, उन क्लियर कट वो बोलते हैं कि भाई ये वर्किंग कंडीशन वहाँ ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से we don't want to support these brands until and unless they give us some sort of surety or the benefit। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 1 × 3 प्रोडक्ट की प्राइस देने को तैयार है इफ इट इज मेड इन यूएस। अगर यूएस मेड है तो गुलाम साहब पैसे दे देंगे, बिकॉज यूएस में जो भी काम करता है लेबर, ये एटलीस्ट गेट द मिनिमम वेज एंड देयर सर्टेन हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से बोलते हैं कि वी आर सेटिस्फाइड, एटलीस्ट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स गुड एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड एंड द सोसाइटी अ बेटर प्लेस। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल राइट नाउ। सही है ना, ये इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट ये चल रहा है, इस बात को मान लें। ये अब बाकायदा पाकिस्तान और इधर भी शुरू हो गया कि यार we'll be supporting only those organizations, those people, those who are working good for the environment, for the society, for the people, all these things। अब आ जाए एचआर डायरेक्टर, यानी ये आपको सोच के बात करनी है। एचआर डायरेक्टर उसने कहा कि लेट्स अवॉइड इट, वो कहता है भाई अभी अभी इसको बंद कर। तो अब इसमें हम क्या बात करेंगे? एज पर एचआर डायरेक्टर, अवॉइड इट बिकॉज maybe our strategic belief and all that, and it's not good, and if this risk pop up, it's going to affect our going concern, all that. This is also very extreme and ये आपने लिखना है। क्यों? if look at the article, आप उस article का reference है, कितने % जो कोकोआ फार्म्स हैं, they are in those nations and they are doing it and everybody is buying it। मैं ये नहीं कह रहा कि कैजुअल चलना है, but avoiding is not an option। और उसने क्या लिखा है? immediately avoid, यानी without any backup plan, let's avoid it। avoid का मतलब ये हुआ
अवॉइड करो। और इसका मतलब ये है कि लेट्स एंड अप योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने इदारे को खुद ही बंद कर दो, अपने हाथ से ताला रख दो। यानी इफ वी ऑप्ट एचआर और डायरेक्टर ओपिनियन, द रिस्क, इवन द रिस्क इज नॉट पॉप्ड अप, just by following this opinion we are actually ending up our organization, and if not ends up the organization, we are actually damaging our profitability or damaging our competitive edge right away। सही, क्यों, कहां से दूसरा ढूंढोगे, और अगर दूसरा ढूंढ भी लिया, once again you need to develop a big channel, the cost would be up, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो immediately we can do it। सही है ना। तो इसका भी ये जो इसने बात की ना, और कह के ये उड़ गया है या उड़ गई है कि let's avoid it, this is not gonna work, क्यों। अब यहाँ पर एक बात, अब देखिए, अब आपको एक डिफरेंट एंगल से बात करनी है। मैंने ये आपसे कहा कि लोग कहते हैं मेड इन पाकिस्तान, मेड इन बांग्लादेश एंड ऑल दीस थिंग्स वी डोंट गोना बाय, बट लुक एट दिस आइटम चॉकलेट। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक्सेप्टेड, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार एकदम अवॉइडेड। जब आप चॉकलेट का रैपर खोलते हो तो ठीक है, आर्टिकल में भी ये लिखा है कि इतने कस्टमर इस बारे में ना सोच रहे हैं, ना इतने अवेयर है, ना कुछ है, कि भाई ये चॉकलेट का रैपर खोलते हुए जो बच्चे हैं वो ये भी सोचेंगे कि हु मेड दिस प्रोडक्ट, वेयर वाज द फार्मर्स, वो वाज द चाइल्ड, उनको तो शायद इस चीज का पता भी अभी ना हो। ठीक है ना। ये ऐसी ऐसी एक पैटी प्रोडक्ट है। हाँ, ये एक ऐसी पैटी प्रोडक्ट है, ये कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है, या कोई एयरक्राफ्ट बनाने की कोई मशीनें और इंजन नहीं लगे हुए कि हम देखेंगे कि पोल्यूशन रेट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन क्या है। इतनी सारी चीजें हम नहीं देखेंगे इसमें। सही ना। तो ये भी देखना है कि अवॉइडेंस इज नॉट अ गुड आइडिया राइट नाउ। बातें सारी सही की हैं, बट इट्स अबाउट एंडिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे जो बैलेंस अप्रोच थी है, अच्छा इसमें भी सॉरी मैं वो स्लाइड बनाना भूल गया, इसकी स्लाइड कैसे बनेगी, सेम एचआर डायरेक्टर लिखना होगा, ऑप्शन उसने क्या दिया, अवॉइड इट, अवॉइड द रिस्क, और व्हाई उसके बीच उसने लिख दिया इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द ह्यूज रिस्क एंड ऑल दैट। ठीक है। जो मजे का जो सवाल जो उसने रिक्वायरमेंट है वो है फाइनेंस डायरेक्टर, जिसने क्या किया, he talks about the balance approach, a good mediocre approach, neither avoidance nor accepted, try to reduce it, and how you reduce it, how you manage it, how you minimize it, minimize की टर्म भी यूज करें, manage की टर्म भी यूज करें, how you manage it by putting controls। ठीक है ना। देखो ना, it's a mediocre approach, यानी you actually looking at your belief, your ethical values and all that, and at the same time you're looking at your commercial system, because you have liability of all your stakeholders. It's not only the liability towards that magazine article or only the NGOs or to the customer. You have liability, this you can say, you have liability towards your shareholders, your investors, your employees। अगर उसकी बात माने और सब कुछ बंद कर दें, employees will get the golden parachute of boom, या फिर आप shareholders को लेके बोलेंगे we invested so much heavily in this particular company and now they're saying that we ending up this organization, we're gonna spend too much, या ethical values इसको follow नहीं करेंगे, तो पता चला आपकी share price will drop right away। तो पता चला कि the good approach is, and a good stakeholder approach is the finance director approach, is saying that we should reduce this thing। Now how you gonna reduce it, ये सवाल उसने पूछा, कंट्रोल क्या होगा इसमें। तो भाई इसमें कंट्रोल ये होगा, सबसे पहले तो obviously we actually take the responsibility। सबसे पहले तो हम एक responsibility ये लेते हैं, यानी we feel that yes the whole industry is sick, we look at this article, we doing this environmental research and we feeling it, यानी हम इसको risk we accept it, हम इसको मानते हैं। अब ये एक्सेप्ट वाला एक्सेप्ट नहीं है, यानी वी एक्चुअली आइडेंटिफाई दिस रिस्क, वी एक्सेप्ट दिस रिस्क। नाउ हाउ यू गोना मिनिमाइज इट, इसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो इस रिस्क को। आपको पता है चाइल्ड लेबर, ये सारी चीजें, सबसे पहले रेगुलर मॉनिटरिंग और मे बी डिटेल टॉक विद योर एग्जिस्टिंग फार्मर्स, उनके साथ, बाय लुकिंग एट देयर, उनके अपने ऑडिट्स भी होते हैं, बाय लुकिंग एट देयर फैसिलिटी, कि भाई उनकी फैसिलिटी है उस पे जाना, मे बी दे कैन हैव अ फिजिकल इंस्पेक्शन, कई लोग जाते भी हैं, जाके फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं। यू कैन हैव वन मोर ऑप्शन दैट यू हायर अ थर्ड पार्टी, सही ना, आपके बीच में एक थर्ड पार्टी और द इंटरमीडिएरी, द क्वालिटी कंट्रोल पार्टी, एंड दे विल बी डूइंग दोस ऑडिट्स, दोस रेगुलर ऑडिट्स, इसको कहेंगे रेगुलर मॉनिटरिंग, या एक टर्म यूज होगी रेगुलर ऑडिट्स ऑफ देयर प्रीमिसेस, रेगुलर ऑडिट्स ऑफ देयर, बिकॉज यू आर अ बिग गाय, आप उनके बड़े कस्टमर हो, तो डेफिनेटली दे विल हैव टू बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट विद यू। वो आपको दिखाएंगे आपकी प्रीमिसेस पे, यू कैन सी देयर फाइनेंशियल्स, यू कैन सी देयर व्हाट यू कॉल देयर पेरोल, जो कुछ भी है, ऑल्दो उनके पास सारी चीजें कैजुअल होंगी, ये भी हम मानते हैं, फार्मर्स ये सब। तो एक तो ये हो गया कि रेगुलर ऑडिट्स और रेगुलर इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें हो, यानी उनको आएंगे, यू हैव टू बिफोर यू गो विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिफोर यू हैव बिग कॉन्ट्रैक्ट,
मेक श्योर दैट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग चाइल्ड लेबर, एटलीस्ट उनको ये बोलना तो बनता है। तो एक और बात भी मैं यहाँ बता दूं, लोग कहते हैं चाइल्ड लेबर बहुत बुरा है, लेकिन आप ऐसे ममालिक का सोचो जो बिल्कुल गरीब मुल्क है। व्हाट इज द ट्रेड ऑफ? अगर बच्चे काम नहीं करेंगे, ये मैं आपको बताऊं, लेकिन अब रियल बातें करें ना, इट्स रियल रियलिटी बेस्ड पेपर। अगर बच्चे काम नहीं करेंगे अल्टीमेटली भूख से मरेंगे, खाएंगे ही। बच्चे काम नहीं करेंगे अल्टीमेटली क्राइम करेंगे, क्योंकि घर में कोई तालीम थोड़ी मिल रही, घर में जो माँ बाप है वो कोई एजुकेशन थोड़ी दे रहे हैं, या उनका कोई ऐसा एटीट्यूड थोड़ी है टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। वो बोलेंगे बाहर निकल जाओ, क्राइम करेगा, सुसाइड करेगा, भूख से मरेगा, बीमारी से मरेगा, बाहर निकल के और करेगा। तो कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि इन सच कंट्रीज विच आर वेरी अंडर डेवलप और बहुत ही डिस्टर्बिंग कंट्रीज हैं, वहां चाइल्ड लेबर विद सम कंट्रोल्स एंड विद सम बैलेंस प्रोटोकॉल्स, इट इज फाइन। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। भाई जब खाने को ही नहीं तो काम ही करेगा ना। हाँ, ये लाइबिलिटी बनती है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन और टुवर्ड्स एम्प्लॉयर एंड ऑल दैट, कि वो उनका थोड़ा हेल्थ का, थोड़ा बहुत किताबें देनी, थोड़ा बहुत इसके लिए कुछ कंट्रोल रखने के, उनके साथ किसी किस्म की कोई सेक्सुअल हरासमेंट तो नहीं हो रही, कोई उनका अनफेयर एडवांटेज तो नहीं ले रहा है, सही नहीं, ये सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस भी करना होता है। यू कैन नॉट ट्रीट ऑल द कंट्रीज लाइक यूरोप और यूएस कि यार अब यहाँ सब कुछ ऐसा होगा, या हर शहर कराची की तरह थोड़ी होगा, या हर पेरेंट्स थोड़ी होंगे। आपके इंटीरियर वाले एरियाज भी, नॉर्दर्न एरिया, हर जगह काम करता है। इवन small kids, in their teenage or within below teenage, they actually leave their countries and they leave their states. वो क्या प्रोविंस उसको छोड़ देते हैं। आप नॉर्दर्न साइड में पाकिस्तान को देखें तो उधर से इंटीरियर साइड से दे कम अप टू द बिग सिटीज, लाहौर आ जाते हैं, कराची आ जाते हैं, and they work. तो भाई ये तो करना होता है, but as the boss of the house, of the family, or as the boss of the organization, it's your liability to take care of those guys। सही ना, छोटे वो तो काम करेंगे, क्या करें। तो ये भी चीज को दिमाग में रखें। तो आप ये बताएं इसमें कि भाई avoidance is not an option, जो फाइनेंस डायरेक्टर ने कहा, because those countries they are very very underdeveloped भी and they are not regulated। सबसे बड़ा मसला ये भी कि regulated भी नहीं है ना। जब लॉ कुछ कर ही नहीं रहा obviously, and the need is the intensity of the need is high, कि people are hungry and they want food or their parents are allowing them, तो अब क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि we can't eliminate it। ये बात आप उसमें भी लिख सकते हैं जिसने eliminate वाली बात की, कि हम eliminate तो कर नहीं सकते, but as by looking at our reputation and our risk management, what we can do is yes, regular monitoring ये सब कर सकते हैं, then रेगुलर रिव्यू ऑफ पेमेंट्स कर सकते हैं। क्यों? सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि अल्टीमेटली वी आर द सोर्स, हम ही तो जड़ है इसकी। what we want to reduce our costs so that we can be more competitive and so that we can be more profitable for our shareholder। यही बात है। तो आप ये देखें, if you do regular audits and quality control and all that, ultimately the farmers they're going to ask you big money कि भाई हमें कुछ balance amount तो ये भी this is your responsibility as a finance director, as Dulce, a big brand, कि you have to give a balanced money। इतना पैसा तो दो कि at least they can manage their organization, कि अपने इदारे को maintain तो कर सके। अगर ये maintain भी ना कर सके तो फायदा क्या होगा। और फिर they have to, and then you put some control and ensure कि हाँ भाई okay, you giving them some health facility, some education facility and all that। ठीक है, ये चीज। अच्छा, meanwhile और एक risk management इसमें क्या हो सकता है, regularly looking for ethical sourcing, child free sourcing, child labor free sourcing, उस पे भी रेगुलर नजर को as a backup plan। या फॉर एग्जांपल if 70% you're doing from them, और उनको भी आप कोशिश तो करो, you're trying to minimizing by giving them investment and all that, ये सब, लेकिन at the same time आप इसका alternate भी ढूंढो। मैं ये नहीं कर रहा, कोई ये नहीं लिखना alternate product ढूंढो, alternate product को क्या ढूंढे भाई, ठीक है ना, उसको क्या है, try to find some alternate farmers जो they are labor free, child labor free practicing they are doing। तो ये भी, ताकि in case you never know, maybe in the environment already they have made the article, they published the article, और ये article publish हो, maybe some news and all that, पता चला हुआ ये कि एकदम इसमें boom आया and the customers, although it's a very tiny penny product, सब कुछ है, लेकिन obviously it's a big industry, maybe in future if there is any possibility of boom, possibility of awareness and all that, वो चीजें आ गई, तो you have some sort of arrangement with other child labor free practices as well, सही ना, वो चीजें भी। और आप अपनी बुक में भी शो कर सकते हो, maybe in your annual report, in your board meetings, or if sometime you know कोई ऐसा लीगल केस भी होता है, मे बी योर कस्टमर्स और एनजीओज इफ दे स्टार्टअप, तो आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि यस वी ट्राइंग इट, वी हैव these control in practice, these ISO or quality control and all that, and at the same time we are researching and we have some sort of farmers which are doing this good practice, ठीक है ना, sustainable practice कर रहे हैं। anyway, let's move on।
नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले कहा ये सवाल मुश्किल नहीं है। और ये जो आखिरी रिक्वायरमेंट है इसमें तो मुझे अफसोस भी है कि इसने पहली दफा ऐसे मॉडल का नाम भी दे दिया, वरना एसबीएल का ये लेवल नहीं है कि वो मॉडल का नाम दे, ठीक है ना। वो कहता है कि आप अपनी प्रैक्टिस खुद करो। द थर्ड वन इज you recently attended a brainstorming meeting. It is a very open question. Brainstorming meeting with some of the directors of Dulce. Some of the directors of some of the directors of Dulce. At this meeting, the participants brainstormed. दिमाग उन्होंने चलाएंगे. They brainstorm the key processes and activities Dulce should focus on to achieve performance excellence with the aim of increasing customer retention loyalty. Obviously, that's the ultimate goal of commercial organization. कि यार हमें customer loyalty चाहिए, customer retention चाहिए, and for that we have so many activities in which we need to excel. Following this meeting, the finance director has asked you. अच्छा, ऊपर जो requirement थी उसमें आपसे वो पूछ रहा था skepticism skill. कि जो बातें कर रहे हैं, किसी ने अवॉइड का कहा, किसी ने एक्सेप्टिंग का, तो थोड़ा चैलेंजिंग माइंड के साथ, क्रिटिकल माइंड के साथ. अच्छा, विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग, और इसमें वो आपसे इवैल्यूएशन पूछेगा कि आप असेस कितना अच्छा कर पाते हो जो when they're working. चलें रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. With the aim of increasing customer retention loyalty. Following this meeting, okay, the finance director has asked you guys to consider the brainstorming meeting summary कि जो हमने brainstorming meeting में, board meeting में बात की है, in order for the directors to evaluate how Dulce is achieving performance excellence. कि जो हमने जिन areas पे बात की है, क्या whether the Dulce is achieving those areas or not, whether they are excelling or not. What is the requirement? Present a set of briefing notes, simple note यानी narrative form में लिखना है, for the finance director, you're talking to the finance director, which evaluate the extent to which the criteria for achieving performance excellence are being met, whether the Dulce is doing it or not, using the finding of the brainstorming meeting. Where is the brainstorming meeting? ये रही भाई आपकी brainstorming meeting, जिसमें ये सर्कल्स इन्होंने बनाए. किस पे इन्होंने बात की brainstorming meeting में? They talking about the customer. See, this is a big area. Their leadership. Okay, that's the big area. And then HR development of staff जो था, HR development, and then obviously our operations. Okay, and what else? Measurement यानी appraisal, control, appraisal of operations. सही ना, इस पे बात की. ठीक है, ठीक है. अच्छा, meeting note. During the meeting, the directors used the Baldrige model. Malcolm Baldrige model आपको पता है as a framework जिसने ये 6-7 एरियाज पे बात की है. सही है ना. Baldrige model का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ये जो एरियाज हैं, कौन से एरियाज हैं? कस्टमर, स्ट्रेटजी, लीडर्स, रिजल्ट एंड ऑपरेशन, नॉलेज मैनेजमेंट, स्टाफ, ये 6-7 एरियाज हैं. अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें पता नहीं क्यों Baldrige मॉडल का नाम भी दे दिया, वरना देना भी नहीं चाहिए था. खैर, इन्होंने पूरे Baldrige मॉडल पे बात नहीं की, इन्होंने तो 3-4-5 एरियाज पे बात की, 1-2 एरिया मिस कर दिए क्योंकि उसने 7 फैक्टर्स बताए. एंड व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट फ्रेमवर्क? इट एक्चुअली टॉक अबाउट दैट दीज आर द एरियाज, ये वो एरियाज हैं, and these are actually interlinked. ये interlinked है how we achieve our strategy, how we excel and how we achieve our objective. यानी हमें कहाँ excel करना है जिससे हम अपने objective को achieve करें. यानी Baldrige मॉडल जो है ना, वो linking criteria पे बात करते हैं. You not talk about the isolation कि भाई इस एरिया पे बात करती है, इसका दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं. Strategy, customer, obviously your big boys, leaders, इनमें your staff, how they gonna help, उस linking criteria पे बात करता है. And what's the objective of this Malcolm Baldrige model? ये framework आपको बताता है कि भाई how we gonna achieve our objective, यानी किन areas में हमें we need to excel to get the fruitful result. Your organization mission, your organization objective, वो कैसे achieve? आ जाए, चलें इस पे बात करते हैं. आप चाहे तो Baldrige मॉडल भी पूरा अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो ये 5 एरियाज में बात कर ले जो इन्होंने की हुई है. फिर उसने आपकी रिक्वायरमेंट में Baldrige मॉडल अप्लाई करने को नहीं कहा है, ये इस बात को भी क्लियर रखें. कुछ बच्चों का मैंने फीडबैक लिया था, उन्होंने कहा था सर Baldrige मॉडल ना, वो कहा कि in our board meeting we talk about, so sometime in board meeting they talk about SWOT analysis, their choice, sometime in board meeting they talk about 5 forces. करें, आपकी रिक्वायरमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है. अच्छा, अब अगर हम देखें पहली चीज, let's talk about
let's say our leadership कैसे देखें, this leadership in any organization, whether it's Tulsi or any organization, leadership is very important. यानी they are actually the key captains, they're actually the captain of the ship, सही ना? यानी all the stakeholders, they're looking at the leaders कि भाई हमने आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दे दी, कस्टमर्स जो है उन्होंने अपना पूरा ट्रस्ट दे दिया, सप्लायर्स जो है they are highly dependent, they did so much investment, all that. यानी ये जो लीडरशिप है, when you talk about the C-suite और चेयरमैन, CFO, CEO, सीनियर मैनेजमेंट, इसकी बात करते हैं, या स्टार्टिंग ऐसे ही है भाई, लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सही ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. how you see leadership working, you're excelling the performance, वो कैसे कर रहे हैं? तो अब देखिए इसने क्या लिखा है, लीडिंग द बिजनेस, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम supported by strong management, mission and aims regularly reviewed, strong corporate governance. Obviously, how do you see leadership is going positive? कैसे देखते हो? वो आप ऐसे देखते हो, by looking at the mission, by looking at the vision, सही ना? Whether they regularly review the mission and they have a good visionary leadership. सही, एक ऐसा इदारा है विदाउट विजन चल रहा है, इसका मतलब ये, यानी दे डोंट हैव एनी फ्यूचर, कोई फ्यूचर है ही नहीं, तो इसका मतलब जो सीईओ और जो चेयरमैन और जो सीएफओ बैठे हैं, they're good for nothing, they are just running the organization. यार एक इदारा है, एक सिस्टम है, बैलेंस सिस्टम, जिसमें इनको बैठा दिया. नो, we see leadership, and the positiveness of leadership is how regularly they review mission and the vision, किस तरह का उनका मिशन है, फिर how well they manage stakeholders. Do they have any equitable treatment sort of thing? ऐसा तो नहीं है कि they only take care, यानी ऐसा इदारा है, जैसे कभी कभार मैं बोलता हूँ कि भाई how do you see Apple, तो मैं बोलता हूँ as a customer, although सारे एप्पल की प्रोडक्ट हैं, तो कभी कभार मैं यूं भी बोलता हूँ, ये मेरी एक बात में बोलता हूँ, एज अ कस्टमर आई डोंट लाइक स्पेशली द चार्जर एंड ऑल दैट एंड द प्राइसिंग एंड ऑल दैट, बट एज अ शेयर होल्डर आई लाइक एप्पल, मेरे शेयर होल्डर के रोल में. लेकिन जब मैं लीडरशिप को देखूं, तो लीडरशिप का क्या काम है, क्या बैलेंस स्टेक होल्डर अप्रोच. ऐसा तो नहीं whole amount, the whole fund is given to the dividend और बाकी कुछ नहीं बचा for the rainy days, and when you have the recession you fire all the employees, सारे employees को आपने फायर कर दिया. तो ये वाला एक पॉइंट हो गया कि भाई how they manage stakeholders, what are you doing for the stakeholders, ये चीज. Then the balance of powers and corporate governance thing, do they have good committees in practice, some sort of independence, क्या कोई independence है या नहीं है, they have good succession planning or not, कि ऐसा नहीं कि ये बोर्ड खत्म तो the whole organization is collapsed, ये सारी चीजें. तो ये what is this, this is the first thing by this Malcolm Beldridge, या फिर आप ऐसे भी बात कर लें इनकी brainstorming meeting of Dulce, we need to have good strong leadership, और ज़ाहिर इनकी leadership काम भी कर रही है, they have good leadership team, support this mission aims regularly reviewed, yes, and support good corporate governance, क्योंकि देखिए good corporate governance actually gives you guarantee for the sustainability of the organization. When organization have weak corporate governance, यानी जब सारे पार्ट्स किसी एक दो के हाथ में होंगे, केस एग्जांपल एनरॉन, क्या हुआ, जब चेयरमैन और सीएफओ के हाथ में सारे पार्ट्स दे दें, ultimately they'll take care of themselves and finally organization will collapse. Good corporate governance actually attract good stakeholders, तो इनका आपस में भी रिश्ता है, corporate governance और stakeholder का. तो that's the first point, leadership, कि ये इस एरिया में क्या काम कर रहे हैं और इस एरिया में इनको क्या करना है, सही है ना, टू एक्सेल. देखो इसमें बीच में क्या लिखा है, अपने सवाल में आप देखिए इन द लास्ट पेज, व्हाट डू वी डू टू अचीव परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, वी डू दिस, ठीक है. नाउ second is the engagement with our customers. Yes, in commercial organization like Dulce, customer is the king. Whatever you do, whether it's leadership, it's strategy or anything or competition, कुछ भी, उसके लिए ultimate goal क्या है, customer loyalty. एक दफा आइए और बार बार आइए. Yes, what they doing, they are regularly communicating with customer and that's a good thing. यहाँ पर एक बड़ा अहम point है, which you can also write if you have the option, if you get the chance. If you do not regularly communicate with your customer, it means your competitor is doing the same thing. सही है ना, your competitor is dealing with your customer. भाई देखें, अगर मैं एज अ टीचर आपके साथ ज्यादा बातें ना करूं, या आप मेरे एज अ स्टूडेंट और मे बी द फ्यूचर कस्टमर्स और व्हाटएवर, अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट ना करूं वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप, वाया फेसबुक एंड ऑल दैट, अल्टीमेटली मैं मार्केट से आउट होता जाऊंगा, आप मुझे भूलते जाओगे एंड somebody else will come and take my place. ऐसे ही होगा ना, जब आप कस्टमर से बात नहीं करोगे एज अ बैंकर, एज एन ऑडिट फर्म और व्हाटएवर,
your competitor, your customer is actually talking to your competitor. इसकी बड़ी सीधी सी मिसाल है, एक अजीब सा जोक हो जाएगा, लेकिन वो है कि भाई जब वही होता है ना, वो बोलते हैं यार अगर मैं मैसेजेस नहीं करूंगा रेगुलर बेसिस पे, she gonna talk with someone else. तो ये ना नौजवान इस बात को समझ रहे हैं। अच्छा, what they do, they have this customer communication, they do regular communication via emails and all that. That's a good thing. They have to do it. Promotional offers, yes, if you download our app and you'll get 10% off, or if you do this survey. Good thing is KYC, which they're doing, know your customer through customer surveys. This is very important because you're actually asking your customer to give their input. And once you have this KYC thing, know your customer आ जाता है, तो आप उस risk को भी manage कर सकते हो कि what your customer is saying by have the star rating thing, by their reviews, ये सारी चीजें transparency भी लाती है, it actually motivates the customer. कस्टमर बोलता है एटलीस्ट देयर इज समवन हु इज लिसनिंग टू अस, होता है ना फीडबैक, आपको फौरन एक ईमेल आ जाती है, आपने जहां चॉकलेट बाय की या कोई भी चीज या ऐप से बाय की या मे बी यू बाय इट ऑनलाइन, तो आपको फौरन ऑप्शन देता है कि इफ यू गिव अस द फीडबैक एंड विल गिव यू x 10% फ्री, इफ यू गिव अस द फीडबैक, इफ यू गिव अस द इंफॉर्मेशन, विल गिव यू x चॉकलेट नेक्स्ट टाइम 10% ऑफ और 20% ऑफ व्हाटएवर। तो ये सारी चीजें, फिर देखिए कस्टमर से बहुत सारे केपीआईज ये भी है कि अगर आप लॉयल्टी वगैरह को देखना चाहते हो ना, कस्टमर लॉयल्टी एंड ऑल दैट, द ग्रोथ एंड, तो आप अपनी स्ट्रेटजी से भी उसको देखते हो कि हाउ सक्सेसफुल योर स्ट्रेटजी इज। फॉर एग्जांपल योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, तो उसमें आप क्या देखते हो, आप यही तो चीज देखते हो कि यार देखो मैं कैसे, मुझे पता चलेगा कि माय कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी और माय डिपार्टमेंट इज एक्चुअली making the strategy and implementing the strategy. How can I see the performance? By looking at the growth, by looking at the sale, by looking at the profitability, looking at the performance of the business. कि यार आया ये काम कर रहे नहीं कर रहे, यानी पता ये चला मैं यहाँ इसको इरेज करूं। आप अपनी स्ट्रेटजी को हाउ यू कैन सी, इससे आपको अपनी लीडरशिप का ही पता चल जाता है, बिकॉज एक्चुअली दे आर मेकिंग द स्ट्रेटजी एंड एट द सेम टाइम इफ योर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने बात की है कि व्हाई वी हैव दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ है कस्टमर्स के लिए सो दैट वी कैन रिटेन आवर कस्टमर एंड वी कैन मेक देम लॉयल। सही है ना, हम अपने कस्टमर को लॉयल कर सकें कि अगर उसने एक प्रोडक्ट हमसे बाय की तो नेक्स्ट टाइम वो दूसरी तीसरी चौथी सारी प्रोडक्ट बाय करे, एंड दे हैव दिस ऑल डेटाबेस एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिससे उनको पता भी चलता है कि व्हाट हैपेंड इन दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर कुछ कस्टमर बुराई भी लिख के जाते हैं तो उससे ही पता चलता है कि यस इफ देयर इज एनी नेगेटिव रिव्यू। देखो ना कस्टमर सर्वेज दुलसी इज डूइंग, यू कैन राइट लाइक दिस, इफ दुलसी इज डूइंग कस्टमर सर्वे सो दे कैन हैव अ पॉजिटिव फीडबैक जो इनको मोटिवेट भी कर सकता है, मे बी दे कैन गिव देम रिवॉर्ड, और नेगेटिव फीडबैक भी जिसको इंप्रूव कर सकते हैं। दैट्स सिंपल। अच्छा, देन दे हैव यस स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफ कैसे भाई, especially when you talk about Dulci, मैंने अभी पीछे ही बात की, they're doing handmade chocolate, luxury chocolate, they're dependent on staff and all that, तो जाहिर है regular finding of staff वो बहुत important, सही है ना, and they're doing it, regular staff training, they're doing this training thing, this is very important so that you can satisfy the demand, so that you can make them smart, so that you can make an efficient thing, efficient system, efficient team आप बना सकते हो। गुड एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, देखो अप्रेजल से फायदा क्या होता है, अप्रेजल से पता चल जाता है गधे और घोड़े का डिफरेंस। अदरवाइज जो आपके पास अच्छे लंबी रेस के घोड़े हैं, यू नेवर नो कि उनको कब बोनस देना है, और मे बी यू गिविंग द इक्वल सैलरी टू एवरीवन, सो यस दे हैव गुड एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिससे आपको पता चलता है कि यस, तो फेयर अप्रेजल सिस्टम, दिस विल हेल्प इन द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द डुलसी। स्टाफ सर्वे, यस, जिस तरीके से हमने कस्टमर के लिए क्या बात की थी, कस्टमर और एम्प्लॉय का रिलेशन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट। इफ एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड, इफ यू ट्रीट योर एम्प्लॉयज पॉजिटिवली, दे गोना ट्रीट योर कस्टमर पॉजिटिवली। जिस तरह आपने कहा केवाईसी इज इंपॉर्टेंट, नो योर कस्टमर या नो योर कॉम्पिटिटर, एट द सेम टाइम KYE also important क्योंकि they are major asset, और ये this Dulci is doing, that's a good thing, सही है ना, staff survey। Then managing our operation, this is very important इनके लिए, तो स्पेशली ये जो अब हालात इनके चल रहे हैं कि ऑपरेशंस में yes you need to have regular investment in bringing efficient operation, यानी inefficiencies को माइनस करना है, ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो दुलसी है ये डिपेंडेंट है किस पे, ये कोई ऐसा इदारा नहीं है कि ये लिया और बेच दिया, दे आर एक्चुअली बाइंग द रॉ मटेरियल, दे प्रोसेसिंग इट, सो दे हैव सो मेनी ऑपरेशंस, जो चाहे इनके सेकेंडरी वैल्यू चेन ऑपरेशन हो, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ऑल दैट, एंड एट द सेम टाइम इनको वो जो प्राइमरी वैल्यू चेन ऑपरेशंस भी है, सही है। तो इन्वेस्टमेंट इन लेटेस्ट प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, वंस अगेन टू मेक इट स्मार्ट, वंस अगेन इफ दे हैव गुड ऑपरेशंस और ऑटोमेटेड ऑपरेशंस हैं, तो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में
लेबर की डिपेंडेंसी कम होगी, एरर्स वो कम होंगे, ये सारी चीजें। रेगुलर प्रोडक्ट रीडिजाइन बात हो चुकी है, विल गिव देम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो इनका क्या है, क्रश देयर कंपटीशन। इनको अपने कंपटीशन को जो क्रश करना है, उससे ये इस तरह काम कर सकते हैं। लेकिन व्हाट डू वी डू टू अचीव परफॉर्मेंस एक्सेलेंस? वर्किंग ऑन योर कस्टमर, गुड लीडरशिप विद स्टाफ, एंड यस योर प्रोसेस, योर सिस्टम, योर ऑपरेशंस, चाहे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, होल्डिंग, outbound logistics, sales, marketing, all that thing, in सब चीजों में क्या, this way they can get a competitive edge by doing this e-commerce thing. बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। Working on e-commerce and this e-business activity, उससे भी क्या होगा, ultimately error free, less dependency on labor, smart work, that's a good thing, सही है ना। ई-कॉमर्स है तो इसका मतलब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ भी इलेक्ट्रॉनिकली यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर सप्लायर्स, अपने सप्लायर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, इन सबके साथ भी। और वैसे भी इनकी तो वेबसाइट वगैरह ये सारी चीजें भी रेडी है। हमने लास्ट मीटिंग में बात भी की थी कि वन ऑफ द सेल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज व्हाट, इज देयर ई-कॉमर्स, ई-बिजनेस, सही है ना। अब उसके लिए नहीं है कोई बंदा बैठा होगा जो एवरी टाइम लुकिंग एट द स्टॉक एंड ऑल दैट, अब तो वो सारा काम इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो डीलिंग नॉट ओनली विद द एक्सटर्नल, जो आपकी पीछे जाके सप्लाई चेन में भी विद द फार्मर्स, एंड फर्दर आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ भी, एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एफिशिएंसी एंड यू नो टू गेट इन लाइन। Then control, measuring our operation, not only operation but measuring our operation, yani controlling is very important, measuring our operation, regular reporting of key performance measure, profitability, shareholder returns, customers, and use of big data analytics. Obviously this is very important, वही वाली बात, if you don't measure it you can't manage it। ये मेरी वाली बात है कि भाई आप अगर measure नहीं करते हो किसी चीज को, if you don't count it you can't manage it। फिर वो चीज always, if there is no measurement there is no management, फिर management भी कोई नहीं है। whether it's you talk about the shareholders, you talk about dollars figure, अगर आपको पता ही नहीं कि what was the last time earning per share and this time, what was the profitability last time and this time, what was the GP margin last time and this time, what was your efficiency ratio, your liquidity ratio, your profitability ratio, सारी चीजें आप पढ़ते हो। तो yes, that's very important। अगर measurement नहीं है, control नहीं है, for example shareholders, for example customers, हमें ये पता ही नहीं है कि how many अल्लाह दे रहा है बंदा ले रहा है, आंखें बंद करके। तो ये तो मालूम कर लो कि last time how many customer we had and this time are we going, it doesn't matter, क्या है what's the saying, कि saying ये कहती है your direction matters, it doesn't matter where you are, your direction matters। हाँ, ये कि आपका डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। अब चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन हो, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, कि अब आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहे हैं, यू बैड। और अगर आप चाहे किसी भी लेवल पे, लेकिन अगर आपकी ग्रोथ लेवल ऊपर की तरफ है, ओके यू गुड, सही है ना, जबरदस्त आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रेगुलर रिपोर्टिंग ऑफ की परफॉर्मेंस मेजर, यानी रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज में रिपोर्टिंग ही तो है आजकल, वट एवर द एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर यूजिंग, हर वक्त एक ही बात होती है, रिपोर्टिंग, गुड रिपोर्टिंग, रियल टाइम रिपोर्टिंग, फास्ट रिपोर्टिंग, वो चाहिए। Whether it's about the shareholder, whether it's about the customer, अच्छा customer sale तो बहुत हो रही है, nobody care about returns, returns कितने हो रहे हैं, we need to take care of the returns and each and every product in Dulce, in each and every particular taste segment, क्या बड़ी वाली चॉकलेट ज्यादा रिटर्न आती है, छोटी रिटर्न आती है, क्या है, सही है ना, किसका कस्टमर है वो कितनी दफा रिटेन हो रहा है, by looking at your website, आपकी वेबसाइट पे ज्यादा काम हो रहा है, और मे बी on your physical stores, example in Dulce they know that these are the 20 stores which are not profitable and they're gonna eliminate it। how do they know that, ये उनको कैसे पता चला, कंट्रोलिंग से तो पता चला, by reporting, उसी से पता चला। इसी तरह एम्प्लॉइज, हमारे वो कौन से एम्प्लॉइज हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, what are those things we doing, and after that, after let's say after appraisal or after grievance or after disciplinary action 50% of the employees left, ये हमेशा क्रिसमस के बाद इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आते हैं। all these things you know through with what, with a good reporting system। जब आपके पास अच्छा reporting system होगा, you'll have this thing, and obviously nowadays with big data analytics and your good softwares and all that investment, सही है ना। तो ये इन्होंने brainstorming की, और देखिए रिक्वायरमेंट क्या पूछी उसने, रिक्वायरमेंट ये पूछी कि भाई इस brainstorming में we find out some areas कि भाई our operations and our measurement and our customers and all that,
और आप now you as a customer you actually you as a consultant you assess and you evaluate because they are giving you marks for the evaluations. इसमें परफॉर्मेंस जो है वो आपकी इवैल्यूएशन की है, प्रोफेशनल मार्क्स क्या आप इवैल्यूएट करें, are they going in the right direction, if they are doing this and they have given you the areas उन्होंने आपको दे दिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वैल्यूएट मॉडल की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने अपनी मीटिंग में अटेंड किया यूज किया, ऑल्दो वो भी पूरा यूज नहीं किया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये भाई ये एरियाज हैं और इस एरिया में क्या ये एक्सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पे बात करनी है, आइदर जो ये है ये अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ऑलराइट, again if you have any question let me know. मैं जरा अपने आप को देख लूँ इसमें फिर, ठीक है। ऑलराइट, हाँ, तो अगर आपके पास कोई और सवाल है या कोई ऐसा इनपुट है, ठीक है, दिस इज वंस अगेन दिस इट्स वेरी ओपन क्वेश्चन है, you can have more ideas, more innovation, maybe you look at the past papers में उनका अपना सजेशन, ये मेरा अपना स्कूल ऑफ थॉट है, मैंने अपने तौर पे बात की, और आप अपने तौर पे बात कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर एंड यू टॉक अबाउट रियलिटी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, जिसमें आपको चाइना वाली बात है, जियोपॉलिटिकल बात है, चॉकलेट प्रोडक्ट उसमें क्या हालात है, ड्यूटीज किस तरह ये लगा देते हैं और उससे पूरा अल्टीमेट प्राइसिंग और वो, तो यानी स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट रिस्क, व्हेन यू टॉक अबाउट द कंपनी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और इस तरह, तो उसमें आप ये सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। चलें, दैट्स इट, अपना ख्याल रखें एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।